Respected Chairman, sir, respected members, my seniors, colleagues, good morning and a very warm welcome to each one of you. Today's we have gathered here for a very insightful and interesting discussion. In the fast-paced world of infrastructure and highway development, we are constantly chasing targets, be it construction target, be it awarding projects. But in that race, sometimes we tend to forget about our own health and peace of mind. As per Ministry of Health and Family Welfare, chronic diseases, chronic illness like diabetes, hypertension, heart diseases, they are responsible for over 60% of all deaths in India. So this is quite alarming. And today's symposium will help us to manage stress, build emotional capacity and vital skills for managing complex projects. We are honored to welcome two exceptional bright minds, Dr. Anil Singhvi and Ms. Surbhi Pandya, who have been combining science and holistic healing and changing lives. Introducing Dr. Singhvi, a renowned oncologist from Indore. He brings decades of medical expertise with a passion for decoding the mind-body connection. Transitioning into wellness, he created the acclaimed Transform Your Life program, enabling many to reverse chronic conditions through simple lifestyle shifts. As a visiting faculty at Labasna, Mussoorie, he mentors civil servants on health, fitness, and mental clarity. Extending his impact, he also leads mind, body, and soul retreats worldwide and is a certified master hypnotist, specializes in transforming the emotions through hypnotherapy. Introducing Ms. Surbhi Pandya, she is based in New York, complements this vision with over 20 years of guiding individuals through emotional and personal breakthroughs. A global speaker, author, and a wellness educator. With her unique approach, she simplifies complex emotional challenges into practical tools that people can use in everyday life. Her deep understanding of why things happen the way they do, this has helped many people to bring a lasting change. Her program, Lifestyle Intelligence, this has empowered many to overcome chronic illness. Her initiatives with the Indian Consulate in New York and Parliament of World Religions, this highlights her global influence. So together, Dr. Anil Singhvi and Ms. Surbhi Pandya, they will lead this symposium with insights on curing chronic diseases, reversing aging, and achieving emotional freedom, promising an insightful experience for all the participants. Request both the speakers to please come on the dais. Dr. Anil Singhvi and Ms. Surbhi Pandya. Also request Chairman Sir to please come on the dais to felicitate the speakers. Center. We welcome Ms. Surbhi Pandya also. Now I request Chairman Sir to say a few words. डॉक्टर सिंघवी, मैडम पांड्या, हमारे इस प्रेजेंस में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम लोग, जैसा आप NHI के बारे में हमारी सड़कों पर चलते रहते होंगे, जैसे हम लोगों को अपनी सड़क पे हिप्नोटाइज करते हैं, आई एम श्योर आप भी आज हम लोगों को इस तरह हिप्नोटाइज करेंगे। डॉक्टर सिंघवी के बारे में मैं अपने कई सारे बैचमेट दोस्तों से बहुत सुनता रहा हूँ और इत्फाकन ऐसा हुआ, मतलब कभी चीजें जो होते हैं, कहते हैं भाई मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, संयोग ये होता है, कभी कहते हैं ना कि संयोग हो गया, अचानक हो गया। सो ऑलमोस्ट से 5 days बैक ए बैचमेट ऑफ माइन कॉल्ड कि
डॉक्टर सिंघवी से आप बात कर लो, और प्रोबेबली ही विल बी इन द टाउन। मैंने आपसे बात की, और एज लक वुड हैव इट, आपका एक सेशन 21 और 22 को मानेसर में लगा हुआ था। सो आई सेड कि डॉक्टर साहब, व्हाई डोंट आई मीन यू join us, guide us and train us. तो he is very hard for time. लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं कि ऑफ ऑल द जितनी आप हर जगह सर्विसेज देते हैं लोगों को, माइंड बॉडी इसकी करते हैं, दिस विल बी मोस्ट यूजफुल, बिकॉज हमारे लोग, मैं 30 साल में बड़ी जगहों पे काम कराया हूं, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा काम कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। और मतलब ये जो है, हर साल 6,000 किलोमीटर सड़क बना देते हैं। 6,000 किलोमीटर सड़क का मतलब आप समझ लीजिए लगभग 27,000 लेन किलोमीटर। 27,000 लेन किलोमीटर को अगर आप 365 से डिवाइड कर दीजिए, तो लगभग आप ये समझ लीजिए आपका कितना, लगभग 80-85 लेन किलोमीटर डेली बना दे रहे हैं। ये बैठे इतने लोग हैं, इनमें से इसको मल्टीप्लाई जो फील्ड में हमारी यूनिट उनको जोड़ लीजिए, हम लोग हैंडफुल हैं, बस हैंडफुल हैं। लेकिन अब मैंने इसको देखा है कि दे ऑल, ये सब जो है ना, यू नो, जैसे एक रबड़ होती है, उसको खींचो ना, देयर इज ए लिमिट। ये सब लिमिट पे आ गए हैं। ट्रस्ट मी, हर साल इनसे, मतलब मैं इनके बीच में काम करता हूँ, इनको मैं देखता हूँ, एट टाइम्स आई पिटी ऑल्सो, लेकिन इट्स एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज इट्स डिमांड ऑफ नेशन यार। नेशन हम पे ट्रस्ट कर रहा है, और हम में क्षमता है, हम काम कर रहे हैं। तो व्हाट इज इट, आपकी जो मेंटल डिस्ट्रेसिंग की ट्रेनिंग आज ये हम सब के लिए बहुत कारगर होगी। और जो आपने कहा कि इसमें बहुत अच्छा वर्ड लिखा है कि विल रिवर्स द एजिंग, तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, ये बहुत काम आएगा। थैंक यू। तो द स्पीकर्स ऑन द डैश, अब एक डिस्टिंग्विश्ड ऑडियंस को मैं आपको सौंपता हूं सर, और शायद ताली बजाने से भी थोड़ा स्ट्रेस कम होता है। Hello, testing. Yeah. Chairman sir, I'm so happy to be here. and I'm so happy to see कि आज मैं आप लोगों से मिल रहा, जो जिन्होंने हम लोगों की इतनी लाइफ में इतना परिवर्तन कर दिया है कि देश क्या विदेश में भी बातें होने लगी है। टू गुड, गजब की चीज हुई है। तो अपन बगैर अब समय गंवाए अपन काम की बातें करेंगे, कि बहुत सारी बातें करनी है, इतनी बातें करनी है आज की आप लोगों को लगेगा कि हम यहीं बैठे रहें, कहीं ना जाएं। फिर मुझे चेयरमैन साहब बोलेंगे कि सड़क कैसे बनेगी यहाँ बैठे रहे तो, है ना? ठीक है, तो अपन 1 मोमेंट। सो बात बेसिकली मैं आपको पहले ये बताता हूँ हुआ क्या। क्योंकि जब भी होता है आपके ऑफिस में कुछ भी होता है तो आप ये पूछते हैं ना, हुआ क्या। अभी के सर किसी से बात कर रहे थे कि कुछ गिर गया कहीं, तो वो कैसे गिर गया। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे साथ ही कुछ हुआ जिसको कि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि कहानी वहीं से शुरू हुई है। तो क्या हुआ है इसको जरा, नहीं ये नहीं वहां से, अच्छा नहीं प्रेजेंटेशन ये चला गया ये, शायद ये नहीं कुछ नहीं किया हमने। हाँ ये हाँ सर आपका सिक्योरिटी अलर्ट आ रहा है। एनेबल कर दो ना, उसको एनेबल कर देंगे। नहीं हमारे से नहीं आ रहा अपना सर। अभी तक तो चल रहा था, ये एनेबल कंटेंट करूँगा। हाँ एनेबल कंटेंट छा गए, फैंटास्टिक।
तो मैं आपको कुछ साल पहले की बात बताता हूँ। ये मैं ही हूँ। 46 साल उम्र थी और दिखने में ठीक ठाक दिख रहा था, हेल्दी था। कोई ये नहीं कह सकता कि इसको कोई बहुत गंभीर बीमारी होगी, है ना। तो लाइफस्टाइल क्या थी हमारी? आप लोगों की लाइफस्टाइल से तो ज्यादा अच्छी ही थी, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है। 68 किलो वजन था, 4 दिन में जिम में जाता था और एक्टिव रहता था। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर कुछ नहीं था। थोड़े से ट्राइग्लिसराइड हाई थे, जो बहुत लोग के होते हैं, और एसिडिटी रहती थी हमेशा। नींद ठीक से नहीं आती थी। तो कहने को देखा जाए तो कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ना, राइट। बट हुआ क्या कि 2006 में मुझे हार्ट अटैक आया। तब मैं जिम में था और जिम में एक्सरसाइज करने के बाद मेरे को हार्ट अटैक आया। तो मैं ड्राइव करके खुद ही चला गया हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को मालूम था किसी को बुलाऊंगा तो और देर होगी। सीधा कार में बैठा और पास में हॉस्पिटल था, 5 मिनट में वहां पहुंच के सीधा आईसीयू में जाके लेट गया। बोले आई ईसीजी करो। तो उन्होंने किया, तब तक तो बाकी लोग आ गए और हैंडल हो गया मामला हैंडल हो गया। देखा गया कि तीनों के तीनों ब्लड वेसल्स गई हुई है, ट्रिपल वेसल डिजीज जिसको बोलते हैं। तो एंजियोप्लास्टी उस समय स्टार्ट हो चुकी थी। तो उन्होंने बड़े थोक के भाव से स्टेंट लगा दिए, सब जगह लगा दिए। बोले आप अच्छे हो गए। हम भी सोचे थे हम अच्छे हो गए। तो 2007 में हम ठीक ठाक थे, शिकागो गए थे, शिकागो का फोटो है। तो अब देखोगे कि वैसे तो बंदा अच्छा दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, लेकिन देखेंगे चेहरे पर हल्की सी सूजन सी दिख रही है ना? और ये 2012 में, कहने को बंदा हेल्दी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगा कि क्या ये सूजा सूजा चेहरा, मजा नहीं आ रहा। बहुत सारे टेस्ट कराए, थायराइड वायराइड, ये कुछ नहीं मिला। सेम चीज चलती है 2014 तक। तो क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो सब हुआ तो क्यों हुआ? आज हम क्या करते हैं कि हम जब कुछ होता है हमारे साथ तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास कि इसको ठीक कर दो, और डॉक्टर स्टेंट लगा के, सर्जरी करके, कुछ भी करके ठीक कर देते हैं। पर प्रश्न किसी ने पूछा कि क्यों हुआ, तो क्यों हुआ? तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी टूटी फूटी भाषा में एनएचआई की थोड़ी सी यूज करूंगा। अगर सड़क घस गई तो क्यों घसी? क्या उसकी मिट्टी खराब थी? क्या उसका बेस खराब था? या सड़क की क्वालिटी खराब थी? यहां पे क्या हुआ, हम क्यों घस गए, ये सोचने की बात थी। इसका आंसर पूरे एलोपैथी में नहीं मिला। अच्छे अच्छे बॉम्बे के डॉक्टर से हमें मिला, क्योंकि मैं सबको जानता था पर्सनली। नहीं, बोले तो होता है। तो फिर प्रश्न ये है कि अगर ये होता है और हमें प्रश्न का आंसर नहीं मिल रहा है, मतलब हम शायद उसको सही तरीके से पूछ नहीं रहे। तो जब भी आपको आंसर नहीं मिले तो आप क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछो, दूसरे क्वेश्चंस पूछो। हाँ, तब जाकर के ये इन्वेस्टिगेशन का काम है बेसिकली। तो हम आपको कुछ नए क्वेश्चंस बताते हैं जो हमने पूछना शुरू किए उस समय, ये देखने के लिए कि क्यों हुआ। तो वो क्वेश्चन जब हमने पूछना शुरू किए तो हमें आंसर मिलने लगे, और जब आंसर मिलने लगे तो हमने उसको एक्सपेरिमेंट करके यूज में लाया। उस पद्धतियों को, उस मैकेनिज्म्स को हमने यूज किया, तो रिजल्ट क्या आया? 5 किलो वजन कम हो गया, एसिडिटी खत्म हो गई, स्लीप बहुत अच्छी हो गई, ब्रेन फॉग नहीं था, एनर्जी लेवल बहुत इंप्रूव हो गए, और चेहरे की सूजन खत्म हो गई। तो आज भी देखो नहीं है, ठीक है ना। तो आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ? तो ये मैं हूं 2020 में, और ये भी 2020 की पिक्चर है। तो ये है पिक्चर 2014 की और 2020 की। तो हेल्थ में मेरे हिसाब से तो फर्क है। हाँ, बल्कि जो घर वाले कहते हैं आप दुबले हो गए, पर मुझे लगता है मैं फिट हो गया। एनीवे, क्वेश्चन ये है, और ये आज की पिक्चर है 2024 की। तो आप ये बताइए, इसमें हेल्दी आदमी कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला? हाँ, किसी किसी को लेफ्ट वाला दिख रहा है कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, लेकिन राइट वाले आदमी को ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। ये ध्यान रहे कि 10 साल का फर्क है, हाँ, लेफ्ट और राइट के पिक्चर्स में। एनीवे, तो जो हमने सीखा, जो हमने समझा, फिर हमें लगा कि जब हम इतनी सारी चीजें अपने आप में ठीक कर सकते हैं, तो क्यों ना हम दूसरों को सिखाएं। तो हमने एक प्रोग्राम चालू किया जिसको कि ट्रांसफॉर्म योर लाइफ प्रोग्राम कहते हैं। 14 वीक्स का रहता है, 14 हफ्ते, 3.5 महीने का होता है, जिसमें कि हम वीकेंड पे एक जूम मीटिंग करते हैं। वो बताते हैं कि अगले हफ्ते सबको क्या करना है, क्या क्या खाना है, कैसे खाना है। वो है छोटी छोटी चेंज करते हैं, बहुत बेसिक।
बहुत बेसिक चेंज करते हैं कि सड़क की फाउंडेशन कैसे बनानी, पहले उस पर 3 हफ्ते काम होगा, फिर उसका बेस कैसे बनाना, फिर 3 हफ्ते काम होगा। इस तरह से धीरे 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 पूरा रिबिल्ड करते हैं और उससे हम देखते हैं कि क्या मजेदार रिजल्ट्स आते हैं। तो वैसे ही सुरभि जी भी चलाती है प्रोग्राम, सेम ही है ऑलमोस्ट, लाइफस्टाइल इंटेलिजेंस बोलते हैं। पैरेलल हम लोग दोनों प्रोग्राम ये रन कर रहे हैं। इस तरह से जूम में मीटिंग्स होती हैं और काफी लोगों ने इसका फायदा उठाया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमने खाना सिर्फ चेंज किया है, कोई कैलोरी इनटेक कम नहीं करी, कोई एक्सरसाइज नहीं कराई, तो ये 9 हफ्ते में डिफरेंस आया है बॉडी के शेप में। अमिताभ वर्मा जी आप लोग जानते होंगे, दिल्ली के रहने वाले हैं, IAS हैं, 82 बैच के, और ये सबसे पहले बैच में थे मेरे जो हमने काम किया। वो इसलिए थे क्योंकि वो मेरे क्लासमेट है ना। तो ये लेफ्ट साइड में देखिए उनकी पिक्चर, और राइट साइड में उन्होंने कुछ 17 किलो वजन कम किया और उसके बाद उन्होंने डबल काम करना शुरू किया आफ्टर रिटायरमेंट। आज उनके पास इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि हम खुद अचंभित है कि कैसे करते हैं। कासिम जी दुबई के हैं, 105 किलो वजन था, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनको स्लीप एपनिया था, 1 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाते थे, विटिलिगो था, सफेद दाग थे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, रोज 32 गोलियां खाते थे, है ना। तो उन्होंने जब प्रोग्राम किया 36 किलो वजन चला गया, कोई भी डिजीज नहीं बची और गोलियां हो गई 0, नींद वींद सब ठीक हो गई। तो क्वेश्चन क्या थे जो कि राइट क्वेश्चन हमने पूछे और आंसर्स क्या मिले। पहली बात ये पिक्चर देखिए, ये है आदिवासी अफ्रीका के जो अभी भी बीहड़ में रहते हैं, वहां रहते हैं जहां कोई सिविलाइजेशन नहीं है, और इस सिविलाइजेशन नहीं होते हुए वो कुछ भी नहीं खाते जो हम खाते हैं। पर आप उनकी हेल्थ देखो, कोई भी आदमी में डायबिटीज नहीं है, किसी में ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट डिजीज तो दूर की बात है, कैंसर नहीं है और मोटापा नहीं है। और क्या चाहिए, सारे अस्पताल खाली हो जाएंगे अगर ये नहीं होगा, तो उनको अस्पताल की जरूरत नहीं। तो वो एक क्वेश्चन था जो हमने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये देखिए कि आपके जो ग्रैंडफादर्स थे उनकी उनकी अगर जनरेशन की बात करें तो उस समय डेथ कैसे होती थी अपने दादाओं की, पूछोगे तो कैसे हुआ, साहब उम्र हो गई थी चल बसे, उम्र हो गई थी चल बसे, बाकी तक तो ठीक रही, जिंदगी अच्छी रही। मोस्टली 90% ये आपको रिजल्ट मिलेगा। आज क्या होता है, आज ये होता है कि किसी को हार्ट डिजीज हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को लंग डिजीज हो गया, स्ट्रोक, किडनी फेलियर, और ये कब हो गया, 30 या 40 साल 45 साल की उम्र में, और वो आगे की 20 साल वो हॉस्पिटल के चक्कर काटता है और फिर चल बसता है। डिफरेंस क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो देखो हम लोग अलग अलग क्वेश्चन पूछ करके हम एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि कहां गड़बड़ हो रही थी। तो एक और चीज समझिए, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि आप किसी भी पक्षी को देखो, जानवर को देखो जो जंगल में रहता हो, जो उड़ता हो आसमान में, उसका वजन बिल्कुल नॉर्मल रहता है, उतना ही खाना खाता है जितना उसको जरूरत है, चाहे उसका ढेर सारा खाना रख दो उतना ही खाएगा। ऐसा क्यों, वो तो कोई कैलोरी काउंटिंग नहीं करता, वो कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, डाइटिशियन के पास नहीं जाता, कुछ नहीं करता, वो तो परफेक्ट खाता है, परफेक्ट उसका वो रहता है। एग्जाम्पल है चिंपांजी, चिंपांजी जो है 2000 कैलोरी रोज की खाता है अंदाजन, तो 50 साल में वो कुछ 1 लाख पाउंड खाना खाएगा। तो अगर वो खाली 1% भी कम खाए तो उसका बॉडी वेट 1000 पाउंड से कम होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट कैलकुलेशन है ये, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो 100 पाउंड उसका बॉडी वेट कम होगा बाई 1000 कैलोरीज, 4 लाख कैलोरीज कम करके, बचेगा नहीं वो। और वैसे अगर 1% ज्यादा खाएगा तो वो डबल हो जाएगा, होता ही नहीं है। चिंपांजी भी अक्लमंद है। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे अंदर बॉडी में कुछ फीडबैक सर्किट्स होते हैं, ऐसे फीडबैक सर्किट होते हैं जो बताते हैं कि अब खाना सफिशिएंट है और मत खाओ, और वो सर्किट ने काम करना बंद कर दिया है। तो उसको हमको ठीक करना है, अगर वो ठीक करेंगे हमारा काम हो गया, हमें सोचना भी नहीं पड़ेगा, बॉडी अपने आप बता देगी कि कितना खाना और कब खाना। एक रविंद्र पवार जी है हमारे, ये 85 के IAS है और चेयरपर्सन उत्तराखंड के अभी भी सर्विंग है। इन्होंने अभी हमारा प्रोग्राम किया था थोड़े दिन पहले ही, 6 महीने हो गए। तो ये इनमें एक चेंज आया है एट दिस एज, तो अमेजिंग चेंजेस आ सकते हैं। तो इसके पीछे और क्या है क्वेश्चन,
क्वेश्चन ये है कि आप जो सोचते हो आप हो क्या। हम कहते हैं नहीं, आप जो सोचते हो कि हाँ मैं सो एंड सो हूं, मैं शर्मा हूं, तो शर्मा जी के अलावा आपके साथ में बहुत सारे अंदर कीटाणु बैठे हुए हैं जिसको कि हम माइक्रोबायोम कहते हैं। वो कीटाणु हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं, मोस्टली हमारे पेट के अंदर रहते हैं, गट के अंदर रहते हैं। और वो कीटाणु जो करते हैं काम, वो बहुत बढ़िया है। वो कीटाणु क्या करते हैं, हमारे लिए बहुत सारा काम करते हैं, हमारे किराएदार के रूप में रहते हैं हमारे अंदर, और हमारे घर को ठीक रखते हैं, चमका के रखते हैं। तो वो हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखते हैं। उनका डायरेक्ट कनेक्शन गट और ब्रेन का होता है, और उसको वो आपका मूड ठीक रखते हैं, आपकी स्किन को चमका के रखते हैं, आपका फूड जो आता है उसको डाइजेस्ट करके उसमें से न्यूट्रिएंट देते हैं, टॉक्सिन नहीं अंदर जाने देते। इम्यून सिस्टम के साथ बहुत प्यारा काम करते हैं कि इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग और बिल्कुल वो रहता है इनकी वजह से, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम के बीच में एक लिंक बनती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है, और ये लिंक तब काम आती है जबकि कोविड जैसे प्रॉब्लम्स आती है, तो इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है। अगर किसी का इम्यून सिस्टम बैलेंस्ड है तो उसको कोई कोविड नहीं मार सकता, कुछ भी नहीं होगा उसको। और बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये माइक्रोबायोम जो है हमारे अंदर जो किराएदार है वो परफेक्ट हो, जैसे हमको चाहिए वैसे हो, हिस्ट्री शीटर ना हो, नहीं तो वो हमारे घर को तबाह कर देंगे। आज क्या हुआ है कि आज हमारे अंदर का सबका माइक्रोबायोम खराब है, वो हिस्ट्री शीटर से भरा हुआ है, और वो बिल्कुल हमें ठीक से काम नहीं करने देता, हमारे घर की सत्यानाश करके रखता है। उसकी जिम्मेदारी हमारी है, मकान वाले की जिम्मेदारी, किराएदार किसको रख रहा है। तो ये सब है, इसलिए कहते हैं कि अगर माइक्रोबायोम सही है तो आपकी हेल्थ सही रहेगी। दैट इज द की। ये की किसी ने नहीं समझी। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, डाइटिशियन के पास जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई नहीं बताएगा कि आप माइक्रोबायोम को ठीक करो। आपने माइक्रोबायोम को ठीक कर दिया, आपका 90% काम हो गया। कैसे होता है? तो जो अच्छे माइक्रोबायोम है उनको खाना क्या चाहिए, वो खाना हमें अपने आप को देना पड़ेगा। हम माइक्रोबायोम को खिलाएंगे, और जो खाना गंदे माइक्रोबायोम को चाहिए वो हम देंगे ही नहीं उनको। ठीक है ना, सिंपल है। तो वो भूखे मर के भाग जाएंगे वहां से। तो बहुत सिंपल है, हम धीरे धीरे क्या करेंगे कि अपने खाने का पूरा चेंज करेंगे पैटर्न, ताकि हमें फाइबर ज्यादा मिले, और हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी जितने में होने चाहिए वो कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। हाँ, सिंपल नहीं होने चाहिए, शुगर्स नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो कि सब्जियों में, फलों में होती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आज की तारीख में आप जाओगे तो सबके सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट उठाते हैं। कितने लोग जाकर के यही खाते हैं ना, ब्रेड है, बंस है, यही सारी चीजें खाते हैं, पिज्जा है, ये सब सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि गंदे माइक्रोबायोम को करता है। और गंदे माइक्रोबायोम का काम यही है कि अंदर बैठ जाएगा और आपकी पूरी की पूरी इंटेस्टाइन में छेद करता रहेगा, और उसको पोरस बना देगा, और उससे आपकी सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है। तो कोविड के बारे में बताया किस तरह से रॉन्ग माइक्रोबायोम जिनमें था उसमें कोविड में ज्यादा प्रॉब्लम आई, ज्यादा लोग आईसीयू में गए और ज्यादा लोग की डेथ हुई। और ये देखा गया है कि दिस वाज मोर सीन इन द यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना की मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी रेट यहाँ से कम 4 गुना ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा नॉनवेज लोग खाते थे, सबसे ज्यादा मीट खाते थे, और उनका माइक्रोबायोम उस तरह से डिफरेंट था। तो सब्जियां और वेजिटेरियन फूड वो लोग कम खाते थे। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बाद में पूरी रिसर्च सामने आ गई है। तो लाइफस्टाइल डिजीज ही है जो कि कोविड के उसमें परेशानी करती है। राजीव सिन्हा जी को जानते होंगे आप लोग, 1986 के हैं, IAS, ही इज नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ये थे, इनका डील डॉल ये था आई थिंक इन जनवरी, और इन्होंने हमारे जनवरी बैच में ज्वाइन किया था, और वो सारा काम किया जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये हो गए वो 3 महीने में। आज ये हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है। तो वो बोले कि नहीं, किसी को आउट ऑफ शेप और बीमार रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी दवाइयां वहीं सब बंद हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको व्हीट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि व्हीट का बहुत इंपॉर्टेंस है अपने लाइफ में। तो व्हीट नेचुरल क्रॉप नहीं है। अब ये बताओ कि क्या पूर्वज जो हमारे थे, जो जंगलों में रहते थे, से अबाउट 1 मिलियन ईयर्स बैक, व्हीट खाते थे? आटा चक्की में आटा पिसाते थे? नहीं, था ही नहीं। तो हमारी इवोल्यूशन में हमारी मैक्सिमम टाइम हम बगैर व्हीट के जिंदा रहे। तो खाली 10,000 साल पहले, छोटा सा टाइम पीरियड अगर इवोल्यूशन का देखोगे आप, तो 10,000 साल पहले उन्होंने देखा कि भाई ये कुछ घास सी उग रही है,
तो उन्होंने घास में से कुछ बीज निकाल लिए और उसको देखा, अच्छे तो बढ़िया है, तो हम पीस के रख सकते हैं। पहले तो हम कुछ खाना रख ही नहीं सकते थे, रेफ्रिजरेटर थे ही नहीं, तो वो पीस के रख के उसको हम यूज़ कर सकते हैं, जब सूखा पड़ेगा तब खाएंगे। तो व्हीट उस तरह से उन्होंने ढूंढा, और वो धीरे धीरे व्हीट ओवर द पीरियड ऑफ 10,000 ईयर्स काफ़ी चेंजेस आए उसके स्ट्रक्चर में, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में। क्योंकि व्हीट क्या है, घास है, कोई भी दूसरे घास के साथ उसका चलता है, मीटिंग होती है, तो वो नए नए घास बनती रहती है। तो आइंकॉन व्हीट थी सबसे पहले वाली, 14 क्रोमोसोम, फिर 28 क्रोमोसोम की हुई एमर, फिर स्पेल्ड व्हीट हुई 42। ये कॉमन व्हीट है जो अभी चल रही है। लेकिन आपको मालूम होगा कि 1965 में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, और वर्ल्ड में सब जगह, तो काफी लोग की जान गई इसमें। तो नॉर्मन बोरलॉन्ग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस तरह से हम भूखमरी खत्म करें। और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट्स करके, ये अब ये देखिए बीच में खड़े हैं, सबसे पहले जो बीच में टोपी लगा खड़े हैं ये नॉर्मन बोरलॉन्ग है, और ये अभी व्हीट की फसल के बीच में खड़े हुए हैं। तो ये देखिए व्हीट की फसल की हाइट देखो कितनी अच्छी है, उनकी शोल्डर तक जा रही है। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे म्यूटेशन डाले उसमें, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, और इतने लैब में इतने सारी मॉडिफिकेशन किए कि आप सोच भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते। पर वो मॉडिफिकेशन करके उन्होंने एक ऐसी फसल तैयार करी जो 15 गुना ज्यादा पैदावार देती है, और उससे वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड की भूखमरी खत्म कर दी। बांग्लादेश में, मेक्सिको में, यहाँ सब जगह खत्म हो गई भूखमरी। नोबेल प्राइज दिया गया इनको, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, आप लोग जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब व्हीट क्रॉप जो है वो छोटी हो गई। ये देखिए, ये व्हीट क्रॉप अब ये है जो पहले थी। तो अगर देखा जाए तो ये व्हीट है ही नहीं, जो ओरिजिनल व्हीट भगवान ने बनाया वो तो है ही नहीं, ये तो नॉर्मन बोरलॉन्ग की लैब में बना। तो दिस इज एब्सोल्युटली आर्टिफिशियल क्रॉप जो कि हम सब खा रहे हैं। दिखता व्हीट जैसा है लेकिन करता कुछ और है। व्हीट जो भी हम खाते हैं वो ओपिएट है, मतलब ओपिएट मतलब अफीम है। उसमें क्या है कि एक हमारे अंदर एडिक्शन सेंटर होता है, उस एडिक्शन सेंटर को वो स्टिमुलेट करता है और हमें और खाने में मजबूर करता है, और खाने में मजबूर करता है। नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो मार्क धम्मा ने कहा कि बहुत फालतू चीजें पता नहीं लोग क्यों खा रहे हैं। बहुत सारे उसने उसके ऊपर कमेंट करे हैं कि मेंटल डिजीज तो बहुत ज्यादा इससे हो रही है। तो करता क्या है ये, तो आप ये देखेंगे कि ये इसके जो हमारे इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में सेल्स बने हुए हैं, लाइनिंग है पूरी, वो लाइनिंग के बीच में छेद कर देता है। आप समझ लीजिए कि पेवर लगे हैं आपके फुटपाथ पे, फुटपाथ के बीच में छेद हो गए, तो सारे के सारे टॉक्सिन्स वगैरह सब अंदर ब्लड में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस। तो वो एक प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या होता है, ब्लड शुगर बहुत बढ़ाता है ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स का ग्राफ है, जिसमें कि शुगर बढ़ती है और गिरती है। और जब हाई ग्लाइसीमिक फूड लेते हैं तो ज्यादा शुगर बढ़ती है, और फिर इंसुलिन सिक्रीट होता है तो ज्यादा गिर जाती है। तो ये देखिए, ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स का चार्ट है जो सर्कल करके ऊपर लेफ्ट में दिखाया गया है कि व्हीट का ग्लाइसीमिक इंडेक्स सबसे ज्यादा है 69, जो ब्रेड, व्हाइट ब्रेड का 69 है जो, और राइट साइड में देखेंगे कि शक्कर जो सुक्रोज है उसका 59 है। तो जो व्हीट में शक्कर है वो शक्कर से भी ज्यादा है, कहने की मतलब ये है। तो इसीलिए क्या हुआ है, जब से ये एक्सपेरिमेंट्स हुए और नया व्हीट आया, आप देखेंगे कि किसी तरह से मोटापा बढ़ने लगा और किस तरह से डायबिटीज और ओबेसिटी का ग्राफ ऊपर चला गया। दिस इज ऑल द वे डेटा फ्रॉम 1990 से अभी तक का ग्राफ देखो तो कितना बढ़ गया है। फिर इसमें बहुत सारे तरह के लेक्टिन्स होते हैं, व्हीट जर्म ग्लूटिनिन होता है जो कि अपने बॉडी के प्रोसेसेस में, मेटाबॉलिज्म में बहुत बाधा डालता है, और ये आपके इंटेस्टाइन्स को भी डैमेज करता है और इंटेस्टाइन्स की विलाई को पूरा खत्म करता है। जब इंटेस्टाइन डैमेज हो जाती है तो आपको आयरन की कमी हो जाएगी, आपको दूसरे विटामिन की कमी होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, वहां से कुछ नहीं होगा, तो फिर इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो व्हीट जब देखा गया, रिसर्च करी गई बहुत सारी, पता चला इतनी सारी बीमारियां होती है, चमड़ी की बीमारी, नर्व की बीमारी, माइग्रेन, हेडेक, सब कुछ होता है इससे, डायबिटीज, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून डिजीज, अस्थमा, इतनी सारी चीजें देखी गई कि इसकी वजह से होने लग गया। अगर आपने व्हीट रिमूव कर दी तो क्या होगा, पहली बात, निश्चित रूप से वजन कम होगा। बस आप उतना ही कैलोरीज खा रहे हो तो भी वजन कम होगा ओवर ए पीरियड ऑफ वीक्स, ये होता ही है। और आपको क्या क्या होगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगी, ज्वाइंट की प्रॉब्लम कम हो जाएगी,
और इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब कम हो जाएगा। ये किताब जरूर पढ़िएगा, वीट बेली, ये कार्डियोलॉजिस्ट ने लिखी है जो कि यूएस में बेस्ड है, विलियम डेविस। आई ओपनिंग है, इसको जरूर पढ़िएगा। ये मैंने कभी 8-10 साल पहले पढ़ी थी। और ये ग्रेन ब्रेन के नाम से है, ये भी एक न्यूरोलॉजिस्ट ने लिखी है, यूएस बेस्ड। किस तरह से ब्रेन को ये अफेक्ट करता है वीट। माइग्रेन में तो 100% हमारी वो है। माइग्रेन कई लोग को होगा, आपके पहचान में, आप में किसी को हो सकता है। कितनी बुरी बीमारी है, मतलब इतने परेशान हो जाते हैं कि उसका कोई उपाय नहीं है। खाते रहो दवा, बस छुट्टी लेते रहो कि आज हमारा सर दर्द, हम नहीं आ सकते काम पे। पर आप उस व्यक्ति का वीट हटा दो, माइग्रेन गायब। सीटी स्कैन में जो माइग्रेन के चेंजेस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, एंड वी हैव डॉक्यूमेंटेड दिस। तो ये एडमिरल खन्ना जी हैं, इन्होंने हमारा प्रोग्राम किया जैसा हमने बताया। तो ये 3.5 महीने में इनका पूरा चेंज हो गया, और उन्होंने बड़े एक्यूरेटली अपना वजन मेजर किया हर हफ्ते, और ये उनका ग्राफ है कि किस तरह से वो डाउन हुए हैं, ऑल द वे फ्रॉम 85 टू समवेयर अराउंड 70-71। ये लेफ्टिनेंट जनरल बलबीर सिंह संधू, ये भी बहुत फेमस हैं, अभी रिटायर हुए आर्मी से करीबन 3 या 4 साल पहले। PVSM और SM 2 मेडल्स मिले इनको, और ये हमारे रिट्रीट में भी आ रहे हैं अभी इस सैटरडे को। तो ये अभी इस एज में 68 है या 69 है। तो उस समय ये 3 महीने पहले की फोटो है ये वाली। उसके बाद जब उन्होंने ये सब काम चेंज किया, अपना सब चीज चेंज करी, देखिए क्या है, कैडेट बन गए। एंड ही इज नाउ मच मोर एक्टिव, मच मोर फिजिकली 7-7 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। मजा आएगा इनसे मिलके हमें। एक्सट्रीमली फैंटास्टिक जेंटलमैन। ही हैज डन अ लॉट ऑफ टेड टॉक्स एंड अदर थिंग्स। तो ये तो हमने वीट के बारे में बात की। कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे इस बारे में? राइस, हाँ, राइस के साथ उन्होंने इतना वो नहीं करी हरकतें जो वीट के साथ करी है, क्योंकि वीट जो है स्टेपल क्रॉप रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। राइस ईटिंग पीपल फिर भी लिमिटेड है, तो राइस के साथ उन्होंने नहीं किया है। नॉर्मन बोरलॉग ने हाथ नहीं लगाया। योर बात इज गुड, गुड। वीट नहीं खाना चाहिए, वीट नहीं खाना चाहिए। राइस खा सकते हैं, ज्वार खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं, मिलेट सारे खा सकते हैं, है ना? तो आई थिंक आई एम नियरिंग द एंड ऑफ माई टाइम, जस्ट लेट मी फिनिश। अच्छा, और अब मैं सिर्फ इतना रहता हूँ कि आपके और कोई क्वेश्चन है उसको हमें डिस्कस करते हैं, नहीं क्योंकि प्रेजेंटेशन तो बहुत लंबी है, वो पूरी चीज तो आज नहीं ले पाएंगे हम यहाँ। बताइए, और कोई चीजों के बारे में पूछना है? देखिए, ये कहते हैं ना लोग कि प्रोटीन का क्या होगा, मैं खाली एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, प्रोटीन का क्या होगा। लोग कहते हैं ना कि हम दूध नहीं पीते, या फिर अगर हम अंडा नहीं खाएंगे। आपने देखा होगा, आप अगर जिम जाओगे तो लोग 6 अंडे रोज खा रहे हैं, और वे प्रोटीन पिए जा रहे हैं गप 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 करके। इतना बड़ा इंडस्ट्री है वो। तो ये जेंटलमैन जो हैं, ये यूएस में रहते हैं, और ये स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, और बॉडी भी अच्छी बिल्ड करते हैं। इनकी एज अभी 78 है, और ये टोटल वीगन है। मीट तो छोड़ो, दूध भी नहीं पीते, सिर्फ प्लांट बेस्ड डाइट। मेरा कहने का मतलब है कि प्लांट बेस्ड डाइट पे फोकस रखना जरूरी है। जब हम अपना प्रोग्राम पे ये सब चीज समझाते हैं तो लोग कहते हैं हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। हम कहते हैं कि अच्छा, आप दूध पीना चाहते हो ना, चलो जो दूध पिए। दूध, गाय को कहाँ से मिल रहा है प्रोटीन को? दूध में ला रही है। वो चिकन को कहाँ से मिल रहा है प्रोटीन को? अंडे में डाल रहा है। और वो हाथी को कहाँ से मिल रहा है प्रोटीन जिससे इतना बड़ा हो गया? प्लांट्स। तो इसीलिए बेस्ट है कि हमें जो नेचुरल, जो हमें प्रकृति से देन मिली है कि सब्जियां हैं, सब्जियां जितनी है, फल हैं, उसमें सफिशिएंट है। बस उसमें फोकस करना शुरू करें, ना कि प्रोसेस्ड फूड, ना कि फास्ट फूड, और जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी जो नए चीज़ें आ गई है, वो सबको अभी त्यागना पड़ेगा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि जो हमने जो क्वेश्चन शुरू में अपने आप से पूछे थे उसके आंसर क्या थे। याद है ना वो क्वेश्चन?
हाँ साहब, हाँ वही वही। नहीं, ये गलत फहमी है आपको। अगर आप ह्यूमन एवोल्यूशन देखेंगे, इनका क्वेश्चन ये था कि आदिवासी तो पूरा नॉन वेज होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये देखेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन का, जो पता नहीं आप लोग उस लाइन के कौन से पढ़े हुए आए हैं, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो उसमें दिखेगा कि क्लियरली, हाँ, एंशिएंट ह्यूमन बीइंग वाज स्टिल अ वेजिटेरियन। ओकेजनली ही यूज्ड टू गेट द हंट। ऐसा नहीं है कि हंट नहीं मिला तो भूखा मर जाएगा, वो फोरेज कर करके जा जाके अपना जो उसको खाना मिलता था, कंद मूल, उससे ही काम उसका होता था। और फिर बाकी तो पिज्जा तो खाता ही नहीं था। इसलिए हम कहते हैं सर कि लाइफ बिगिंस एट 60। इसलिए कोई मत ये कहना, बहाने मत बनाना, अब हम चेंज क्या करें, हमारी तो उम्र निकल गई। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इंडिया यही मात खाता है, उम्र किसी की नहीं निकलती। Life begins at 60. Last 59 years have been just been practice, and that is why wherever you are in the phase of your life, you must begin there. ये विमल कीर्ति सिंह जी IAS है, ये भी दिल्ली में रहते हैं, फरीदाबाद में। ये बहुत बड़े लॉयर हैं अब, और ये थे अभी इसी साल की फोटो है, और इन्होंने जब प्रोग्राम खत्म किया तो ये फोटो आई। और ये इतने प्रभावित हुए और कि इन्होंने रिट्रीट हमारी करी, दिल्ली की रिट्रीट मिस कर गए थे, इंदौर आके करी, और उन्होंने अगली रिट्रीट अपने फार्म हाउस सूरज कुंड में रखवाई कि हमारे फार्म हाउस पे आप रिट्रीट करोगे। बहुत प्यारा फार्म हाउस है, हमने वहाँ रिट्रीट करी, और अब अक्टूबर में हम फिर करने वाले हैं। तो उसकी डिटेल तो हम आपको दे देंगे, जो लोग इंटरेस्टेड है जरूर आइएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए वो टेनिस खेल रहे हैं, उन्हीं के फार्म हाउस पे टेनिस कोर्ट है, वर्ल्ड क्लास टेनिस कोर्ट है। वो साथ में सामने 40 साल का कोच है, और कोच के साथ वो सिंगल्स मैच खेल लेते हैं 1.5 घंटे का, एंड हिज एज इज 67 नाउ। तो ये बोले पहले नहीं कर पाता था। अनीता करवल मैडम, आप लोग बहुत सारे लोग जानते होंगे इनको, काफ़ी ये रही हैं। तो ये शी इज़ IAS 1986 आई थिंक, और अभी गांधीनगर में पोस्टेड है। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वेट तो था ही सही, इनको कम से कम 5 या 6 ऐसी जानलेवा टाइप की बीमारियां थी जो कि वो परेशान हो गई थी। पैंक्रियाटाइटिस से लेके, आस्थमा से लेके, फंगल इन्फेक्शन से लेके, डायबिटीज से लेके, न जाने क्या क्या सब कुछ था इनको, और किसी भी तरह से वो ठीक नहीं हो रही थी। तो जो सेकंड फोटो है आफ्टर दी प्रोग्राम है, और ये अब की है, लगभग 1 साल बाद की है, एंड नाउ शी हैज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड अस्थमा ठीक हो गया है। अब ये पूरा दिन भर काम करती है जैसा कि सभी जने कर रहे हैं इनके लेवल के। इट इज़ अमेजिंग। पहले वो 10 कदम नहीं चल पाती थी बगैर इनहेलर के, और अभी तो ऐसा भी हुआ है कि गांधीनगर वाले ऑफिस में सर वो 7 मंजिल एक बार चढ़ के गई कि लाइट नहीं है तो चलो मैं चढ़ के जाऊंगी। तो दैट वाज द अमेजिंग थिंग। ये हमारे इंदौर की ही लेडी है, डांस टीचर है, रोज 10 घंटे डांस करती, तो भी उनका वजन लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 90 kg वजन था, ठीक ही नहीं हो रहा था। उन्होंने फिर किया और एकदम पूरा एकदम बढ़िया हो गया, उनकी एनर्जी 4 गुना हो गई, और आज हमारे प्रोग्राम में एक एज ए कोच काम कर रही है। दैट इज़ वेरी वेरी दिस थिंग। तो सर ये कुछ चीज़ें थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिजल्ट्स मिलते हैं व्हेन देयर इज ऑलवेज अ वे। बस रास्ता ढूंढना पड़ता है, बस लग जाओ कि मेरे को अपने आप को ठीक करना है। मिली तो एक ही जिंदगी है ना, तो एक ही जिंदगी में ऐसा क्या बेवकूफियां नहीं करनी अपने को जो मैंने करी है। तो आप लोगों को भी अपनी जिंदगी को सुधारना चाहिए, सारी चीजें समझो, करो, आगे बढ़ो। और ये तो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे आपने फिजिकली सब ठीक हो गए, लेकिन अगर यहाँ ठीक नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका गड़बड़ है, और उसके अंदर पूरी एंजाइटी भरी है, लिमिटिंग बिलीफ भरे, अरे उसने ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, इसने ऐसा बोल दिया तो क्या होगा, लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, किसी ने बोल के चले गए तो बहुत सारी चीजें आ जाती है दिमाग में। उसको भी ठीक करना जरूरी था। इसलिए वो भी हमने जब पिछले 30 या 40 साल से मैंने और सुरभि ने मिलकर काम किया इसके ऊपर, हमने वर्ल्ड के जो बेस्ट से बेस्ट टीचर्स उनके पास जाके सीखा है। तो फिर हमने सोचा नहीं, अब हमें लोगों की मेंटल और थिंकिंग एबिलिटी को भी हमको आगे बढ़ाना है। तो फिर हमने ये रिट्रीट शुरू करी, क्योंकि क्या होता है कि रिट्रीट में हम फिजिकली काम कर पाते हैं, वो चीज़ ऑनलाइन नहीं हो पाती है। इन रिट्रीट्स में हम बहुत सारे काम करते हैं, 2 दिन में आदमी का पूरा ब्रेन
रीप्रोग्राम हो जाता है, रीफॉर्मेट हो जाता है और सारा कचरा निकल जाता है। वो देखेंगे। अभी मैडम का उद्बोधन होगा, उसके बाद में आप लोगों को एक हिप्नोसिस के थ्रू ले जाऊंगा, जो कि बहुत ही एक इनिशियल रहेगा, बट यू विल सी हाउ इट वर्क्स। मजा आएगा आप लोगों को, है ना? तो कहीं जाइएगा मत, ब्रेक भी नहीं हो रहा है। मैडम आप आइए। थैंक यू। हेलो, स्क्रीन को टर्न ऑफ कर दीजिए। आई डोंट नीड दिस। हाँ, नहीं चाहिए, बंद कर दीजिए। सभी को अभिवादन और थैंक यू। आज आप लोगों ने हमको इनवाइट करा। सबसे पहले चेयरमैन साहब को, जनरल मैनेजर, सभी जनों को, जितने जने आज यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर इस टॉक्स को आज अरेंज किया गया है और आप सभी जने यहाँ उपस्थित हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत अभिवंदन। देखिए, आप लोग सबसे ज्यादा किन चीजों को अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो, या तो काम पर या फिर घर के अंदर। आज मैं उन चीजों को एड्रेस करना चाहती हूँ। पिछले 20 साल का जो काम, मैं रहती यूएस में हूँ, न्यूयॉर्क के अंदर। 20 साल के अंदर मुझे ये चीज समझ में आई कि आदमी को थकाता काम नहीं है, आदमी को थकाता है उसके, क्या थकाता है आदमी को? उसके इमोशंस, राइट? उसकी मेंटल कैपेसिटी, राइट? कि वो कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता है, कितना किस एबिलिटी से किस चीज को कैसे संभाल सकता है। तो अपन कैलोरीज ज्यादा भागने से नहीं करते बर्न। हमारी कैलोरीज ज्यादा बर्न तब होती हैं जब हम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस वर्क कर रहे होते हैं। इट्स एस्टॉनिशिंग फैक्ट बाय द वे, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो आप देखोगे, जब स्ट्रेस आता है बॉडी में तो दो तरह की चीजें हम करते हैं। या तो हम बहुत खाते हैं या हम बिल्कुल भी नहीं खा पाते। होता है किसी के साथ ऐसा? स्ट्रेस में यहाँ कौन है जो कि बहुत खाता होगा? मंचिंग, क्रेविंग्स, कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। होता है किसी को? यस, लॉट ऑफ अस, राइट? और कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्ट्रेस बोलो या फिर एकदम से सडनली कोई ट्रॉमा आए बॉडी के अंदर, मेंटली एकदम ही इनएक्टिविटी हो जाए, तो फिर हमारी बॉडी फिर एकदम ही रिवर्स मोड में चले जाती है। रिवर्स मोड मतलब अब खाना खाना ही नहीं भाता। और वो स्पेशली तब होता है जब कोई बहुत तेज हमें डांट दे, तब हम खा नहीं रहे होते। तब हम चुपचाप एक कॉर्नर में बैठ करके अपने ही अंदर एक स्टेट को, एक मेंटल स्टेट को एक्टिवेट करते हैं, जिसमें हम ब्लेमिंग ऑन दी अदर का एक गेम खेलते हैं। मेरी क्या गलती थी इसके अंदर, राइट? तो अपने साथ में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और फिनोमिनन्स हमारी शरीर के अंदर 24 घंटे हो रहे होते हैं। थोड़ी सी चीजों को यहाँ पर एड्रेस करिए। एंगर, ऐसा कोई है जिसको एंगर इशू बिल्कुल भी नहीं होता हो? होता है, सबको गुस्सा आता है, राइट? गुस्से के बहुत कारण होते हैं, लेकिन हम जनरली उन कारणों को अपने अंदर नहीं ढूंढते। हम उन कारणों को बाहर कहीं ढूंढ रहे होते हैं कि उसके कारण गुस्सा आया, राइट? उसने ऐसा कहा इसलिए गुस्सा आया, उसने ऐसा नहीं किया इसलिए गुस्सा आया। जब कंट्रोल नहीं कर पाते किसी चीज को तो और गुस्सा आता है, राइट? तो एक गुस्सा, अच्छा, गुस्सा वर्क पर तो रहता ही है। कई बार गुस्से का एक अच्छा भी यूसेज होता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है उस चीज को, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, और फिर जाकर के हम कोई बहुत ही फाइन सा एक हाईवे क्रिएट कर लेते हैं। जो भी आपका वर्क ऑफ फंक्शनिंग है, मोड ऑफ फंक्शनिंग है, तो गुस्से के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने भीतर इन इमोशंस को रोज रोज नहीं फेस कर रहा हो। एक और इमोशन है जिसका नाम है एंजाइटी। एंजाइटी किसी ने फेस करी है कभी? ओवर प्रेशर होता है वर्क का जब हमारे ऊपर है, और फिर क्या होता है कि एकदम हाथ पैर एकदम फूल जाते हैं उस समय कि क्या करें, कैसे करें। और उसी समय हमारी बॉडी से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसे रश बोलते हैं, राइट? कॉर्टिजोल रिलीज होता है जो कि अपना हार्मोन होता है बॉडी के अंदर, विच इज रिलीज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इन आवर बॉडी। तो ये सारे स्ट्रेस मॉलिक्यूल्स बॉडी से रिलीज होने लगते हैं बिकॉज हमारे अंदर एंग्शियसनेस क्रिएट हो रही है। एंजाइटी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो होता है फियर और एक होता है फ्लाइट। फियर और फ्लाइट मतलब एक फ्रीज या फ्लाइट। जब बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, जैसे फियर भी एक फॉर्म ऑफ एंजाइटी है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस भी एक फॉर्म ऑफ एंजाइटी है। तो जब स्ट्रेस आता है बहुत एक्सेसिव, तो हमारे पास में दो ही एक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी हमको अवेलेबल करती है।
एक एक्शन है कि वहीं हम खड़े रह जाएं, कुछ काम नहीं हो रहा, और वहीं हमारे को स्वेट चालू हो जाता है। हुआ है किसी को कभी ऐसा? राइट, एकदम पसीने पसीने हो जाते हैं, प्रेशर इतना बिल्ड होता है कि पसीने पसीने आ जाते हैं कि ये काम कैसे होएगा। धीरे धीरे करके पानी पीते हैं, सेटल करते हैं, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, फिर जाकर के मन बनता है काम चालू करें, लेकिन टाइम काफी वेस्ट हो जाता है, एनर्जी काफी वेस्ट हो जाती है अपने आप को जंप स्टार्ट करने में वापस से। ये क्या हुआ, फ्रीज हो गए। और कुछ लोग होते हैं फ्लाइट, अभी ये काम नहीं होएगा, अभी मैं बंद कर रहा हूँ, कल देखूंगा, बस उठ करके वहां से एस्केप करते हैं और भागने लगते हैं। ये चीजें सिर्फ हमारे काम के फ्रंट पे ही नहीं हो रही है, ये हमारे घरों में भी हो रही है। जब बहुत थके हारे यहाँ से जाते हो अपने घर के अंदर, तो डेफिनेटली राइट स्टेट ऑफ माइंड में तो कोई भी नहीं होगा। सुबह भागते भागते गीला तौलिया उठा करके पलंग पर पटक दिया, भूल गए, याद भी नहीं रहा। रोज डांट खाते हैं कि नहीं रखना चाहिए, फिर भी नहीं याद रहा, और शाम को जब वापस लौटे, यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू लिसन टू द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन। करेक्ट? हम अपने इमोशंस को हैंडल ही नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद बस लगता है बस बहुत हो गया, अब शांति से टीवी के सामने बैठकर कुछ देख लें, कर लें, न्यूज़पेपर पढ़ लें, समथिंग और दी अदर थिंग्स वी वांट टू स्पेंड आवर टाइम, बिकॉज वी आर ओवर स्ट्रेस्ड, वी आर ओवरवर्क्ड। मैं आज आप लोगों को 2 टेक्निक्स सिखाऊंगी। दे आर माइंड बॉगलिंग टेक्निक्स, दे आर वेरी सिंपल टेक्निक्स, लेकिन इतनी छोटी सिंपल टेक्निक से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप अपने शरीर से स्ट्रेस को विद इन मिनट्स डिलीट कर सकेंगे। द वर्ड इज डिलीशन, इरेज कर सकेंगे। अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा करते करते आज कितने साल हो गए, सोचिए, कभी किसी ने सोचा? कोई ऐसे 1 साल निकला हो जब गुस्सा नहीं किया हो? हाँ, 30 साल, 40 साल, 50 साल गुस्सा अगर आता है तो। और हम जब छोटे थे तब भी गुस्सा आता था जब हमारी बॉल कोई छीन लेता था। तो अब हम बड़े हो गए तो भी हमें गुस्सा आता है, कोई ढंग से काम नहीं करता जैसा हमें करना है, करवाना है, जैसे हमें चाहिए। कुछ चेंज नहीं हुआ देखा जाए इंटरनली हमारे इमोशनल स्टेट के अंदर। बाहर से हमने स्किल्स बहुत डेवलप कर ली, बहुत हायर एजुकेशन ले ली, लेकिन इंटरनल इमोशनल लेवल पर क्या हम ग्रो कर पाए? दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। अगर आज भी हमारे रिएक्शंस, हमारे इमोशनल पैटर्न्स सेम वैसे ही हैं जैसे हम छोटे थे, रोना धोना गाना, गुस्सा करना, कंट्रोल में नहीं है तो उसके कोई तरीके से अप्रोच करके, मैनिपुलेट करके चीजों को करना, करवाना, ये सारे जो हमारे एक तरीके हमने क्रिएट कर रखे हैं, इन सब की किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय नेचर आपकी बॉडी नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक होती है। नेचुरली आपके पास में कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आना ही नहीं चाहिए। ये मैं साइंटिफिकली कह रही हूँ, क्योंकि जितने लोगों ने एनडीई एक्सपीरियंसेस करे हैं, एनडीई मतलब होता है नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, जिन लोगों ने करे हैं उन लोगों ने इस चीज को प्रूव करा है और बताया है कि हमारे शरीर के अंदर नेगेटिविटी नाम का कोई फैक्टर ही नहीं होता। हमारी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होना ही नहीं चाहिए, हॉट फ्लैशेस आने ही नहीं चाहिए, पसीना होना ही नहीं चाहिए, शरीर में ही पसीना नहीं आना चाहिए। पसीना भी अपने आप में एक स्ट्रेस रिलेटेड आउटकम है फ्रॉम आवर डेली रूटीन एंड लाइफस्टाइल, राइट? तो ये सब चीजें नहीं तो फिर क्यों आ गई हैं? इसका मतलब ये कि वी हैव ओवरवर्क, ओवरडन आवर सिस्टम। हमने अपने स्ट्रेस का टॉलरेंस मतलब इतना हाई हो चुका है कि अब वो टॉलरेंस तो टोटली ब्रेक हो चुका है, लेकिन स्ट्रेस ही स्ट्रेस हायर साइड पर जा रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दीज 2 टेक्निक्स आर, और कैसे हम घर बैठे अपनी ऑफिस के टेबल पर बैठे, सामने बॉस खड़ा है और वो डांट रहा है, चिल्ला रहा है कि तुमने क्या करा, क्या गलत है, उस समय अपनी मेंटल स्टेट ऑफ क्लैरिटी को बिल्कुल बैलेंस रखना ये कला है। और आप लोग करना चाहेंगे इस चीज को? चाहते हो हमेशा राइट स्टेट ऑफ माइंड में रहो, ताकि हर सेकंड आपके जितने भी डिसीजंस हो वो एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल हो और हमेशा करेक्ट डिसीजंस हो। सबसे ज्यादा फियर हमें किस चीज का लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, ये मैंने करा सही नहीं, और कभी और उल्टा मेरे ऊपर नहीं आ जाए। कितनी चीजें डर के साथ में हमारी ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि हमको जो हम कर सकते हैं वो करने नहीं देती, और हम बच बचा करके अपने आप को चल रहे होते हैं। इन सब बैरियर्स को ब्रेक करना पड़ेगा। वी ऑल आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, दैट्स द नेम ऑफ द रिट्रीट दैट वी आर डूइंग इन मानसर दिस वीकेंड। वी आर एब्सोल्युटली लिमिटलेस, हमारी कोई लिमिट है ही नहीं, हम हर चीज पॉसिबल कर सकते हैं। बजाय इसके प्रोवाइडेड दैट
कि हमारे पास में एंजाइटी नहीं हो, हमारे पास में स्ट्रेस नहीं हो, हमारे पास में नेगेटिविटी नहीं हो। और इन चीजों को डिलीट करने के लिए मैं आज आपको 2 टेक्निक सिखा रही हूँ। पहली टेक्निक है फियर्स को लेकर के। अभी हम उस चीज को करेंगे। एवरीवन गेट रेडी विद इट। क्विकली थिंक ऑफ समथिंग दैट रियली मेक्स यू फियरफुल, जिससे आपको सच्ची में बहुत ज्यादा डर लगता है। ओके देखो, कई चीजें होती हैं, जैसे अभी सिंपलेस्ट एग्जांपल्स ले लो कि कोई इंसेक्ट है, उसको देख करके अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन लगता है, फियरफुल लगता है। कोई लोग कुत्ते से डरते होंगे, बिल्ली से डरते होंगे, एनीथिंग, राइट? या फिर लेट्स से फियर हो सकता है। अब आप लोगों के फ्रंट में कोई फियर एड्रेस करो, तो ताकि सबको एक बेस मिले कि कैसे फियर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आइडेंटिफाई करो, कोई हेल्प करो मुझे यहाँ पर। किस चीज का फियर? देखो, शेर डेफिनेटली यस, वही मैंने बोला कि कोई एनिमल एकदम ही आ जाए, बट अभी आप सोचोगे तो हंसी आएगी कि यार शेर आ गया सामने, क्योंकि आज हमारी लाइफ में वो प्रैक्टिकल नहीं है। पुराने जमाने में डेफिनेटली प्रैक्टिकल था, क्योंकि लोग मरते ही शेर के खाने से थे। यहाँ तो आज हम हमारे खाने से मर रहे हैं, तो देयर इज अ डिफरेंस देयर। वो आज हमें नहीं डराता। क्या बोले? ओ वेरी इंटरेस्टिंग। फियर ऑफ ट्रांसफर है किसी को? चलिए, सबके पास में एक तो फियर मिल गया कॉमन। लेट्स डू दैट। ओके, लेट्स चेंज इट, लेट्स क्रिएट दैट रियलिटी इनटू आवर पावर। वो हमारे को अब पीछे नहीं धकेलेगा, हमको इतनी एनर्जी देगा कि चाहे कहीं भी हम रहें, वहां पर हम अपनी 100 नहीं 200% एफिशिएंसी से काम कर सकें, और हमारे को पीछे धकेलने वाला कोई डर ना हो। राइट? सो लेट्स ट्राई दिस। इस टेक्निक का नाम है चेंजिंग द फ्रेम्स। सो आप लोग सब अपनी आंखों के सामने यहां पर बिल्कुल इमेजिन करेंगे कि आप लोगों का ट्रांसफर हो रहा है। चलिए लेट्स ट्राई इट आउट। एक बार ट्राई करना, क्योंकि एक बार भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया तो शायद आप अपने ही नहीं, अपने साथ साथ हर उस व्यक्ति की जिंदगी चेंज कर लेंगे जो आपके साथ में, आपकी सराउंडिंग्स में, फ्रेंड्स, फैमिली में रहता है। लेट्स ट्राई इट आउट। सो इन फ्रंट ऑफ यू अ स्क्रीन, मैं आपको प्रिसाइसली 2 मिनट्स दे रही हूँ। 2 मिनट तक आप अपने अंदर उन सब चीजों को फील करेंगे जो कि ट्रांसफर होने पर फील होती है। राइट? कैसा फील होता है? धक धक करता है दिल, क्या होगा, नई जगह जाना है, कैसे होएगा, इतना सारा एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर करा, कल जाकर के वहां से वापस चालू करना पड़ेगा, यहाँ इतने कलीग्स हैं, वहां जाकर के वापस, वहां लोगों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा तो क्या होगा, मैं इतना सेटिस्फाइड हूं अपने काम से, आगे जाकर मुझे काम का चैलेंज क्या मिलेगा मुझे नहीं पता। जस्ट फील दैट इन फ्रंट ऑफ यू इन दैट स्क्रीन राइट नाउ। अपने सामने एक स्क्रीन को क्रिएट करो। 2 मिनट तक जितना नेगेटिव सोच सकते हो, जितना फियरफुल, एंग्शियस जो आपके बॉडी के अंदर क्रिएट हो सकती है, हो सकता है अभी हाल ही आपको पसीने आ जाए इसको सोचने से, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज ओके। उस चीज को सामने होते हुए देखो। गिव योर सेल्फ 100% टू इट, फील इट। आज डरेंगे नहीं हम, आज हम डर को भगा देंगे। चलिए एवरीवन, अब इस स्क्रीन को हम, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब हम स्क्रीन को हम एग्जैक्टली 15 डिग्रीज लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट है इस साइड, एग्जैक्टली 15 डिग्रीज लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे। सब जने करिए, इट्स जस्ट अ विजुअल। अभी स्क्रीन यहाँ थी, 15 डिग्रीज लेफ्ट पर शिफ्ट करेंगे आप इस फ्रेम को, और अब आप इस फ्रेम को 15 डिग्रीज लेफ्ट पर देख रहे होंगे। वॉच कीजिए। और अब ये जो स्क्रीन है आपकी, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो क्रिएट करिए जहां पर अब आपको डर नहीं लग रहा, जहां पर आपको दिख रहा है कि जहां आप जा रहे हैं वहां के आप मास्टर बन चुके हैं, वहां पर आप बॉस हैं, वहां पर आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो इतना राइट डिसीजन है कि हर व्यक्ति आपके आसपास घूम रहा है। वॉच दैट हैपनिंग राइट नाउ। Shift the fearful frame 15 degrees to your left and watch a new scenario in it. Perfect, right? And now one last task. We will shift this 15 degree frame to another 15 degrees towards the left. So अब ये यहाँ आ जाएगी।
नाउ यू आर लुकिंग हियर, आपकी आईबॉल्स रोटेट होंगी बस टू दिस डिग्री, ओके, चेहरे को मत करिएगा रोटेट, सिर्फ अपनी आईज को रोटेट करिए इस स्क्रीन के ऊपर, एंड नाउ सी दैट दिस स्क्रीन इज कंप्लीटली ब्लैंक, completely blank. Everything has been erased in it. खाली हो गई सबकी स्क्रीन, स्क्रीन खाली, रेज करिए हाथ किस किसने फील करा, वेरी नाइस, ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक, पीछे किसी ने फील करा, स्क्रीन खाली करी, किस किसने ट्राई किया, राइट, ओके नाइस। तो अब अपने इनिशियल फियर पे जाओ सब जने, वॉच योर सेल्फ इन दैट सिनेरियो वेयर ट्रांसफर हो रहा है, अभी इसी क्षण आपको लेटर आया और ट्रांसफर हो रहा है, वॉच दैट हैपनिंग, डज दैट क्रिएट द सेम लेवल ऑफ एंजाइटी विच वॉज देयर 5 minutes बिफोर? रिपोर्ट टू मी प्लीज। किसने डिफरेंस फील करा, फील हुआ एकदम से डिफरेंस? कुछ आप बोलोगे 1 मिनट, एक बार थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करो आपने क्या देखा और फिर कैसे उसको आप प्लीज जरा सा आप एक बार मेंशन कीजिए, सब जने रिलेट करेंगे। स्टार्टिंग में लगा कि नई जगह पे जाना होगा नए लोगों से, लेकिन धीरे धीरे कि वहां पे हाँ ऐसे ऐसे सेट हो जाएंगे, सारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हमारी फेवर में चीजें होने लगेंगी टाइम से, दैट आई फेल्ट। युवा, और लास्ट में आपने स्क्रीन को ब्लैंक कर दिया बिल्कुल, यस राइट। अब मैं आपसे जब पूछ रही हूँ कि आपका अभी सेकंड में ट्रांसफर लेटर आया है, आपको कैसा फील हो रहा है, एंजाइटी आ रही है बॉडी में? उतनी नहीं आ रही मैम, अब नहीं आ रही, कम हो गई है, शिफ्ट हो गई है, फैंटास्टिक। सो दिस इज नोन एज शिफ्टिंग द फ्रेम्स टेक्निक। आप इस टेक्निक को किसी भी चीज पर अप्लाई कर सकते हैं जो आपकी बॉडी में एंजाइटी क्रिएट करती है और एंशियसनेस क्रिएट करती है। इसका एक साइंस है, जो हमारी आईबॉल्स हैं उसके रोटेशन से, केवल आईबॉल्स के रोटेशन से हमारी रियलिटी, हमारा परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है। मेल क्यूमुरा करके एक नॉर्मल आदमी जिसने बहुत हाई लेवल का साइकोथेरेपिस्ट का काम किया हुआ है, ही वाज अ थेरेपिस्ट, अनकॉमन थेरेपी मिल्टन एरिक्सन की, जिसने काफी मास्टर लेवल पर, आज तो मास्टर है वो उस टेक्निक का। सो ही वाज एट द लेवल ऑफ डिप्रेशन टू दैट एक्सटेंट, उसका जितना भी उसने पूंजी, धर्म पूंजी कमाई थी अपनी जीवन की, वो सारी उसने लॉस्ट कर दी, लॉस्ट टू द एक्सटेंट कि there was a time he went into a deep debt also, and he was not able to pay off his bills, his paperwork, his nothing possible. And एक दिन अपनी चेयर पर जाकर he took a decision, I don't want to live anymore. It was to that bad extent. He had lost his home also. उसने एक दिन डिसीजन लिया कि बस अब मुझे और नहीं जीना। And that very second, you know what he did? When he said मुझे और नहीं जीना, तो उसने अपना सर ऐसे पकड़ा और जोर से ऐसे करा, ऐसे करा। When I did that, you know what happened? My eyeballs rotated from the top of my head to the bottom into my body, down here. देखो अपनी eyeballs rotate करो, अपर से लेकर के हल्की सी नीचे के साइड पे, और जैसे ही आपके नीचे के साइड eyeballs आती हैं, that very second आपका presence आपके शरीर में आ जाता है, आपका presence आपके head में अब no more है। जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस कहाँ है? यहाँ पर। जब हम चीजों से डरते हैं तो वो डराने वाली चीजें कहाँ हैं? सामने तो नहीं दिख रहा शेर, शेर की सोच हमें डरा रही है शेर से, करेक्ट। ट्रांसफर की सोच हमें डरा रही है ट्रांसफर से, ट्रांसफर हुआ तो नहीं है अभी, लेकिन सोचने से ही डर लगने लगता है। वो जो सोच है वो यहाँ बैठी हुई है। तो जैसे ही आप अपनी आई बॉल को रोटेट करते हो फ्रॉम अप टू डाउन, आपका पूरा पावर, अवेयरनेस आपकी करंट प्रेजेंट बॉडी के अंदर आ जाता है, और आपके अंदर रियलिटी स्ट्राइक होती है कि रियलिटी इज नॉट इन माय हेड, रियलिटी इज इन हियर राइट नाउ वेयर आई एग्जिस्ट। मैं जहां अभी प्रेजेंट हूं, ये नाउ मोमेंट रियलिटी है, दिस इज अ गिफ्ट टू मी, एंड दैट कंप्लीटली शिफ्ट्स द पर्सपेक्टिव। एंड दैट वाज वन टाइम व्हेन ही डिड दैट स्टफिंग थिंग, और उसकी पूरी बॉडी से उसकी एंजाइटी और एंशियसनेस फॉर डूइंग सुसाइड कंप्लीटली वैनिश्ड, एंड ही वाज शॉक्ड। He said कि क्या हुआ एकदम से, why am I not feeling the same thing? तो उसने बोला कि चलो अभी डिले करते हैं अपन थॉट, आज नहीं कल मरेंगे। सो गया आराम से लेट गया। फिर रात में उसको सारी खतरनाक डराने वाली चीजें आती गई,
सुबह तक उठकर वापस से पसीना ही पसीना कि मैं कैसे बिल्स पे करूंगा, सारे लोग मुझे आकर के ले जाएंगे, मेरी सारी रेपुटेशन का कबाड़ा हो जाएगा. लॉट ऑफ नेगेटिविटीज स्टार्टेड कमिंग इन. मॉर्निंग में उठकर वापस से उसको लगा कि दिस इज द टाइम, आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर, आई मस्ट get away from here. And he was absolutely preparing himself, and then suddenly one more time he shrugged like the same way, and he noticed कि उसका वापस से internal body का sensation negativity खत्म हो गई. That was the point when he designed this beautiful technique known as tuning fork, और उन perspective से बताया कि हमारे eyeball के rotation से हमारी जिंदगी जीने के perspective में change आ जाता है. And that was a mind-boggling discovery after that. Several books are written on that. काफी धर्मों के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे भगवानों की आंखें स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती हैं. जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम जैन धर्म, सो आई सी दैट द डाइटीज एंड द आइडल्स दे हैव देयर आईबॉल्स centered on their नासिक, नासाग्र दृष्टि बोलते हैं, on the tip of their nose. तो जब आईज हमारी टिप ऑफ द नोज से समतल लेवल पर ऐसे अर्थ को देख रही होती है तो हमारे शरीर के अंदर इतना हाई लेवल ऑफ बैलेंस और इक्वानिमिटी आती है कि हम किसी के भी ऊपर जजमेंट नहीं पास करते. So this is like unbelievable science which is inside and provided to us in our own body, but we don't know how to explore and how to use it. Okay? तो अपने लाइफ के फियरफुल मोमेंट्स को, एंशियस मोमेंट्स को केवल ये शिफ्टिंग द फ्रेम, जैसे 15 डिग्रीज राइट में आप शिफ्ट लेफ्ट में शिफ्ट करोगे वैसे ही आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा. एंड देन आपको हिम्मत मिलेगी कि आप उस पूरे फियर को कंप्लीटली इरेज कर सको बाय मेकिंग द बोर्ड कंप्लीटली ब्लैंक आफ्टर दैट. एंड देन सर आप प्लीज इस चीज को वापस चेक करिएगा कि आपकी एंजाइटी लेवल वापस से पुरानी लेवल पर कभी आती है कि अब कभी हमेशा के लिए चली गई. Right? So that will be phenomenal if you guys can do that. Second technique which I'm telling you, this is known as EFT, Emotional Freedom Technique. हमारे पास में जो हमारे इमोशंस हैं वही तो प्रॉब्लम है, नहीं? हमारे इमोशंस ही तो प्रॉब्लम है. जो सामने वाला बोल रहा है हम उसे सुनते कहाँ है, हमें जो सुनना होता है हम वो सुनते हैं, इसीलिए हम करते भी वो है जो हमें करना होता है. तो सारा मिसमैच इम्बैलेंस रहता है पूरे स्ट्रक्चर के अंदर. Right? Clarity of hearing things, clarity of doing things, clarity of making decisions is all lost because of emotions. Right? अगर डर नहीं लग रहा होता, एक छोटे से बच्चे को कभी पूछा कि ये डार्क रूम है और ये लाइट रूम है, इन दोनों में से किसी में जाने में तुम चूज करो, छोटा बच्चा दोनों रूम में उतनी खुशी से चला जाएगा. उसको नहीं मालूम डार्कनेस क्या होती है, उसे नहीं मालूम लाइटेड रूम क्या है. उसके पास में इमोशन नहीं है अभी हाल रिलेटेड कि डार्क डराता है और लाइट हमें राहत देता है. हमारे पास वो इमोशन है कि हमें क्या डराता है और हमें क्या राहत देता है. इट इज ऑल दैट वी हैव क्रिएटेड इनसाइड अस बेस्ड ऑन आवर ओन बिलीफ सिस्टम. सारी डराने, आप मुझे बताओ कुछ लोगों को अभी मैं बोलूं कि चलो पहाड़ चढ़ना है तो एकदम से डर जाएंगे, अरे पहाड़ कैसे चढ़ा जाएगा, कितनी थकान, कोई चढ़ सकता है क्या इतने बड़े पहाड़, क्रेजी, और आज ही आज कैसे. और कुछ लोग क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड दिस इज सो एक्साइटिंग, लेट्स डू इट, वहां ऊपर जाकर के झंडा गाड़ के आएंगे. तो जो लोग डर रहे थे उनको पहाड़ ने डराया क्या, या जो लोग एक्साइटेड थे उनको पहाड़ ने एक्साइटमेंट दिया क्या? अगर पहाड़ दे रहा होता एक्साइटमेंट या डर तो पहाड़ सबको एक जैसी चीज देता ना. हम सबके तो अपने अपने इमोशंस हैं सामने वाली चीज को परसीव करने के. तो डराने वाली चीजें हमने हमारे लिए हमारे दिमाग में क्रिएट कर रखी है, बाहर कहीं नहीं होती. Fear itself is a false state of mind. Fear does not exist in a human body. ये एक एरर है, एंजाइटी एक एरर है, स्ट्रेस एक एरर है. It does not exist in the human body. Right? ये हम लोग क्रिएट करते हैं by our emotions. तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसके थ्रू टैपिंग ऑन सर्टेन पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी you can delete anything from your body. You can delete even physical pains. अगर किसी को यहाँ पर सरदर्द है तो इस टेक्निक को करके वो अपना पूरा सरदर्द खत्म कर सकता है. अगर सर्दी जुकाम है तो नेक्स्ट टाइम एंटीबायोटिक किसी को नहीं लेनी पड़ेगी पेट में. अगर हाथ पैर दुखते हैं तो जाकर के आपको अपनी एक्सट्रीम जो पेन किलर मेडिकेशंस होते हैं वो नहीं लेने पड़ेंगे. फ्लाइट में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बाजू में बैठकर कोई जोर जोर से सर्दी जुकाम है, किसी को सर्दी छींक रहा है, कर रहा है, आपको डर नहीं लगेगा बिकॉज यू हैव दिस टेक्निक. बिकॉज दैट टेक्निक इमीडिएटली डज टू मेजर थिंग्स. वन इज इट बूस्ट योर इम्यूनिटी,
कहीं पर भी हो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होएगी। तो इवन आपकी मेंटल स्टेट की क्लैरिटी बढ़ेगी, फियर्स खत्म होंगे आपकी बॉडी से, नेगेटिविटी खत्म होएगी। उठते से अगर फर्स्ट ख्याल है अरे यार आज ये करना पड़ेगा, दैट इज अ नेगेटिव स्टेट which does not exist in our body and should not exist. तो वो जो फर्स्ट ख्याल आता है अरे यार ये भी करना पड़ेगा, ये भी प्रेशर है, वो भी है, तो करने के पहले ही हम थक जाते हैं, राइट? तो अगर आपने EFT टेक्निक करी तो आप देखेंगे कि उस काम को एब्सोल्युटली जाकर परफेक्टनेस में आप करके आते हो और कोई भी एनर्जी ऐसी नहीं है आपकी नेगेटिविटी जो उसको आपको पीछे धकेल सके उस काम से। तो EFT होती है टैपिंग टेक्निक। अपने हाथ के अंदर 3 जगह पॉइंट्स होते हैं जो कि इमीडिएटली हमारा वेगस नर्व को रिलैक्स करते हैं। वेगस नर्व होती है जो कि हमारी बॉडी को एब्सोल्युटली पीसफुल स्टेट में लेकर आती है, जहां पर स्ट्रेस नहीं होता और कंटिन्यूस हैप्पीनेस क्रिएट होती है। हैप्पीनेस हमारी बॉडी में एक्चुअली में एक फैक्टर है, मॉलिक्यूलर फैक्टर है। हैप्पीनेस इसलिए नहीं है कि यार बच्चा आ गया घर पे तो बड़े हैप्पी हो रहे हैं हम, नहीं, हैप्पीनेस हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं। उन मॉलिक्यूल्स का नाम है ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है। ये हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। इसका ट्रिगर क्या है वो कुछ भी हो सकता है। उसका ट्रिगर आइसक्रीम होता है हैप्पीनेस को ट्रिगर करने का, कोई बच्चे से मिलने का होता है, किसी को अपने पेरेंट्स से मिलने की हैप्पीनेस होती है, कोई भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन बॉडी में जनरेट तो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं हैप्पीनेस के। तो ये जो टैपिंग टेक्निक है ये आपकी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस जनरेट करती है टू दैट एक्सट्रीम एक्सटेंट, विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स, कि आपकी बॉडी के सारे पेन्स तक खत्म हो जाते हैं और आपकी बॉडी में कोई नेगेटिविटी नहीं रहती, कोई नेगेटिव थॉट नहीं बचता। सब सामने बॉस खड़ा चिल्ला रहा है और डांट रहा है और बोल रहा है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, और आप पसीने पसीने टेबल के नीचे आप इस टैपिंग टेक्निक को कर सकते हो और आप देखोगे 3 मिनट के अंदर आपके अंदर कोई एंजाइटी नहीं है और आप फट से जाकर के उस काम को कर दोगे। दैट इज द एबिलिटी। सीखना है, जानना है सबको EFT क्या होता है, राइट? सो 3 टैपिंग पोजीशन सब जने चेक करें। एक है कराटे चॉप पोजीशन विच इज द साइड ऑफ द स्मॉलर फिंगर। ये देखिए छोटी फिंगर के ये साइड में पॉइंट है इस जगह पर, इस पर अपन कराटे चॉप से टैप करते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। एकदम आराम से, धीरे, माइल्डली, काइंडली, बस ऐसे हल्का सा टैपिंग करना है। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है छोटी उंगली और सेकंड लास्ट फिंगर के बीच में एक वैली है, इस वैली पर टैपिंग 1 2 3 4 5 6, 2 हड्डी है, हड्डी के बीच में एक थोड़ा सा सॉफ्ट पोर्शन है। और तीसरा पॉइंट है आपका बड़ी फिंगर और थंब के बीच में बड़ा गैप, ये देखिए एकदम सॉफ्ट पोर्शन है इस हाथ पे, राइट? इस हाथ पर टैपिंग 1 2 3 4 5 6, दोनों हाथ में से किसी भी हाथ पे आप करोगे इक्विवेलेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अपन इस टैपिंग को अभी हल करेंगे। चलिए आप लोग फटाफट फाइंड करिए कि क्या ऐसी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, नेगेटिव थॉट या कोई पेन। यू कैन पुल आउट एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, एंड व्हेन यू थिंक ऑफ द पेन मेक श्योर यू गिव इट अ नंबर। तो आई वांट टू हियर फ्रॉम यू द नंबर कि मैम मेरा नंबर 10 पर है, मुझे इतना पेन है, मुझे इतना डर लगता है उस चीज से, या मेरे पास एंजाइटी इतनी है उस चीज को लेकर के, आई नीड द नंबर। मेरा सर दर्द 10 पर है, 8 पर है, 7 पर है। थिंक अबाउट इट, फील इट इन योर बॉडी एंड गिव इट अ नंबर। एवरीवन शुड हैव अ नंबर मोर देन 5, क्योंकि अभी अपन टैपिंग करके उस नंबर को 0 पर लेकर के आएंगे सबके लिए, सिर्फ 3 मिनट के अंदर। 3 मिनट के अंदर आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएगी टू द एक्सटेंट कि आपके पेन्स as well as आपकी बॉडी के अंदर एंजाइटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। एवरीवन रेडी विद द नंबर? नंबर्स बोलिए अपने अपने। किसी ने आइडेंटिफाई करा या हाथ से उंगलियों से नंबर बताइए मुझे। 7 8 8, वेरी नाइस। 10 बहुत टफ है। सर दर्द है कि कोई इश्यू है घर में किसी चीज को लेकर, फिजिकल पेन है? ओके लेट्स ट्राई दैट। ओके नंबर्स प्लीज, अभी टैपिंग मत करिए, नंबर आइडेंटिफाई करिए। देखिए इसका नाम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है। इसका मतलब ये है कि उस समय इमोशंस का होना जरूरी है, वरना ये काम नहीं करेगी। फिर आप फोन करके बोलोगे अरे कुछ हुआ ही नहीं, जब कुछ था ही नहीं तो होगा क्या, राइट? तो इससे यू नीड टू फील द इमोशन, द नेगेटिव इमोशन राइट नाउ इन योर बॉडी, गिव इट अ नंबर। चलिए इतने सारे जने बैठे, फटाफट नंबर बोलिए अपना। 6 5 7 8। और जो नहीं कर रहा है ना वो फिर बाद में दूसरे से पूछेगा तेरा कैसे रिड्यूस हुआ, इसलिए बेटर है भी मेरे साथ करो। ओके लेट्स डू इट। ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते अपन, लेट्स स्टार्ट द टैपिंग।
आपके अंदर जो आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर दिया, जिस भी इश्यू को लेकर के कोई व्यक्ति भी आपको परेशान करता हो, अब वो व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर पाएगा। वो व्यक्ति इस दरवाजे से आता है, आप उस दरवाजे से बाहर चले जाते हो कि आपको फेस ही नहीं करना है उसे। इतनी एंजाइटी होती है उस सब पर्सन को देख करके, नेगेटिविटी होती है। अब वो पर्सन कितना भी आपके सामने आ जाए, कुछ भी करे, आपको कोई असर नहीं होने वाला है। योर इमोशन रिलेटेड विद दैट विल बी डिलीटेड कंप्लीटली एंड फॉरएवर। आर वी रेडी फॉर इट? लेट्स बिगिन टैपिंग। चलिए, सपोज करिए कि किसी के पास सर दर्द है या फिर कोई भी इमोशन है, उस इमोशन को आप उसके बारे में हर चीज बोलेंगे व्हाइल डूइंग द टैपिंग सीक्वेंस। बस एक बार मेरे को देखिए, फिर आप लोग अपने आप करेंगे इसको एक बार। सपोज करिए मेरे सर में दर्द है और उसका नंबर अभी हाल 8 है, राइट? तो हाउ आई विल डू द टैपिंग? मेरे पास में ये सर दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये काम कब फिनिश होएगा। मुझे लगता है दवाई लूं नहीं लूं, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है, कोई पानी दे दे, कोई चाय ला करके दे दे। ये सरदर्द क्यों हो रहा है? रोज रोज सरदर्द इसी समय पर चालू हो जाता है, काम नहीं हो पाता, फिर इच्छा नहीं होती है कुछ करने की, मुझे ही सरदर्द क्यों होता है? यू अंडरस्टैंड? एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड विद दैट इशू, यू स्पीक इट आउट। दैट्स इंपॉर्टेंट। आप लोग करिए एक बार इसको। देखा आपने मैंने कैसे रोटेट करा है ना? धीरे धीरे बात करते करते अपने आप से यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और फिर थर्ड पॉइंट, ये करके आप लोग एक लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह खोल करके श्वास को छोड़ेंगे। चलिए आप लोग कीजिए इस चीज को एक बार, अपने अपने इश्यूज को लेकर के करिए, उस इशू से रिलेटेड हर चीज को टैपिंग करिए एक बार। लंबी गहरी श्वास लेकर के मुंह खोल करके छोड़ दीजिए। We have been using this technique in the places where civil wars are happening currently. ऐसी कंट्रीज में, ऐसी सिटीज में जहां पर सिविल वॉर्स हो रहे हैं, वहां पर हम लोगों ने बच्चों के लिए इन टेक्निक्स को कराए, जहां वो लोग अपने पेरेंट्स को लूज कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने, और उन बच्चों के अंदर आज कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है, इट्स कंप्लीटली डिलीटेड एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली एंड ब्यूटिफुली। सो इट इज दैट पावरफुल अ टेक्निक। चलिए सेकेंड राउंड हो गया। सेकेंड राउंड में हम क्या करेंगे? सेकेंड राउंड के अंदर भी हम यही करेंगे कि मुझे पहले मुझे देखिएगा बस आप, मुझे सर दर्द हो रहा है लेकिन मुझे अपने आप से बेहद प्यार है। ये सर दर्द मुझे बहुत परेशान करता है लेकिन मुझे अपने आप से बेहद प्यार है। ये सर दर्द रोज रोज होता है, रोज रोज मैं परेशान होती हूँ लेकिन मुझे अपने आप से बेहद प्यार है। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल विथ योर माउथ ओपन। चलिए अब ये सेकेंड राउंड आप लोग अपने आप कीजिए। Take a deep breath, inhale, exhale with your mouth open. Deep exhalation. Perfect. चलिए ये वाला टैपिंग लास्ट मेरे साथ में करेंगे सब जने। ओके? I am powerful. I am super powerful. सब जने बोलिए मेरे साथ में। I am super powerful. I am healthy. I am 100%. I am 200%. I am 500%. I am loving this like anything. मुझे मजा आ रहा है, मैं अपना 100% अब दे सकता हूं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल विथ योर माउथ ओपन। कोई भी है यहाँ पर जिसने इमीडिएट रिलीज फील करा हो? 7, 8 नंबर्स को एग्जामिन करके देखो किस नंबर पे आया? 5 पर आया। कहां से था? 8 पर था। किस नंबर पे था आपका? 7 पे था। 7 से 5 का शिफ्ट फील हुआ बॉडी के अंदर, राइट? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इस टेक्निक को आप केवल 3 मिनट से 6 मिनट तक करोगे और आपकी बॉडी के अंदर जितना भी इमोशनल इश्यू है वो जीरो हो जाता है। ओके, अपने आप के लिए तालियां बजाइए। थैंक यू सो मच। ओके, प्लीज लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। Please live a completely optimistic life filled with all possibilities. आप हर चीज कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं कर सकते। एक लास्ट एग्जांपल लूंगी। इस टेक्निक को करने के पहले मैंने एक प्रश्न करा था लास्ट वीक न्यूयॉर्क के अंदर, जब मैंने रिट्रीट ली इसकी, कि एक पर्सन को बुलाकर पूछा कि आप व्हेल के ऊपर,
बड़ी मच्छी के ऊपर राइड कर सकते हो, तो उसके पसीने पसीने छूट गए, कोई कर सकता है क्या? और उसको जब टैपिंग कराया तो उसके बाद में बोला कहाँ है वेल नाउ ला करके, दो आई एम रेडी टू ड्राइव ऑन इट. That is the efficiency of this technique. So please enjoy. Thank you. थैंक यू. आपने सुरभि जी का बहुत आपने उनके साथ पार्टिसिपेट किया. थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो रिट्रीट्स करते हैं उसमें ये टैपिंग टेक्निक पे मैडम का करीब 2 घंटे की क्लास होती है. ये तो बहुत ही सुपरफिशियल आपको बताया है, बट उसमें 2 घंटे में डिटेल में जाते हैं. जितने भी बॉडी में पॉइंट्स हैं उसको टैप करने से क्या होता है, और 100% वहाँ पे 10 नंबर वालों के भी 0 हो जाते हैं विद इन 5 to 10 minutes. सो और इट गोज, मतलब इट गोज, इट डजंट कम बैक. दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि कैसे होता है, बट नाउ इट हैज़ बीन प्रूवन, बियॉन्ड साइंटिफिकली प्रूवन एक्चुअली. अगर आप देखोगे नेट पे जाकर तो इसके ऊपर में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो दैट वाज इट. तो अब थोड़ा सा अपन ने बहुत सारा अपना मंथन कर लिया है. तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा देखिए क्या है, मेरा जो खुद का सोचना है, दुनिया में आगे बढ़ना है तो क्या करना है. दुनिया में आगे बढ़ना तो क्या करना है, एक कोई गाड़ी को आगे ले जाना तो क्या करना है, फोर्स, एनर्जी, इंजन लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसके ब्रेक्स भी तो खोल दो. अगर किसी जहाज को कहीं से कहीं ले जाना तो उसका एंकर तो हटा दो. तो हम इस तरह से 360 डिग्री क्या काम करें कि फोर्स भी आगे चला जाए और जो चीजें हमें बांध के रख रही है वो चीजें हमारी फ्री हो जाए. ठीक है ना. ये हर जगह काम करती है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली आप ये मत कहना कि मेरे लाइफ पार्टनर से मेरे को फ्री करा दो. वो नहीं होएगा. तो वो फिर मेरे लिए बहुत सुपारी निकल जाएगा मेरे नाम पे. तो वो नहीं करना. तो हमें क्या करना है कि अपना मेंटल फ्रीडम चाहिए. उसके लिए हिप्नोसिस बहुत काम की चीज होती है. हिप्नोसिस ऐसी चीज होती है जिसके कि आप कोई काम कर ही नहीं पा रहे हो. जैसे आपको सुबह उठ के जिम जाना है, और जिम जाना है तो लगता है कि आप सुबह उठ जाएंगे, न्यू रेजोल्यूशन ले लेते हैं, लेकिन उठ ही नहीं पाते. क्या रोकता है बताओ? आराम, यस, और आलस. तो ये आलस कहां से आता है, आराम कहां से आता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, समझ जाओगे तो बहुत समझ में आ जाएगा. माइंड से आता है ना. पर माइंड ने ये भी तो सोच रखा है ना कि मेरे को जिम जाना है, तो वो कहां से आ रहा है? उल्टा काउंटर इंस्ट्रक्शन कहां से आ रहा है? तो माइंड का एक पार्ट ऐसा है जो कि अपने को आराम में रखना चाहता है ना, और एक पार्ट ऐसा है बोले आगे बढ़ो. हाँ बिल्कुल. तो ये 2 पार्ट्स है. तो जो काम आगे बढ़ो वाला है वो तो समझ में आता है कि आपको समझ में आया आपको दुनिया में क्या करना है, जिंदगी में क्या करना है. लेकिन उस पार्ट को कैसे समझाया जाए जो कि आपको आराम में रखना चाहता है, जो कि चाहता है कि अरे आज कल चले जाना, जल्दी क्या है, कैसे समझाओगे? तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपका जो माइंड है ना एक हाथी जैसा है, धीरे धीरे चलता है, और जिसको जिस डायरेक्शन में आना उसी डायरेक्शन में जाता है. हाथी के ऊपर एक महूत बैठा रहता है जो उसको बोलता है इधर चल इधर चल इधर चल, जिम चल जिम चल जिम चल. तो महूत के पास कितना पावर है? कुछ नहीं है. हाथी के पास अथाह पावर है. तो हाथी आपका जो है माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो नॉन थिंकिंग माइंड है, वो आपको वहां ले जाता है जहाँ उसको जाना रहता है. और जो सोचने वाला माइंड है कि मेरे को जिम जाना है, फिट होना, ये करना है, उसके बाद बहुत ज्यादा वो नहीं रहता. तो हम हिप्नोसिस के थ्रू उस माइंड को जाकर के हम बात करेंगे कि ये करो. एग्जाम्पल, हमने दुबई में रिट्रीट करी थी, 2 दिन की रिट्रीट थी. पहले दिन वाले हिप्नोसिस सेशन में हमने ये कहा था आप लोग दुनिया में क्या करना चाहते हैं उसके ऊपर आप बैठ जाओ लेकर के दिमाग में, और 25 मिनट आंख बंद करके बैठ जाओ, हम जो बोल रहे हैं करते जाओ. वो ट्रांस में चले गए. ट्रांस में जाकर के उन्होंने हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, और जब बाहर निकले तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल लग रहा है, आप लोग को भी अभी लगने वाला है. तो वो सब हो गया. दूसरे दिन जब सेकंड रिट्रीट के लिए आए तो उसके हस्बैंड ने बोला तो ये तो सुबह 4 बजे उठ के बैठ गई. वो बोले अब मेरे को नींद नहीं आ रही, इसने तो आज तक नहीं किया ऐसा.
वो वीडियो पर रिकॉर्डेड है। तो उसने ये सोचा था कि मेरे को सुबह जल्दी उठ करके वॉक पे जाना चाहिए, फिटनेस रहना चाहिए, कुछ अच्छी चीज पढ़नी चाहिए, और वो उसने हिप्नोसिस में जाके अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दी। अब वो उसकी फीड है, रोज उठ जाती है, एक बार में काम हो गया एक बार में हो गया। इज दैट पावरफुल और दैट इजी? बस मालूम होना चाहिए कैसे। तो चलो अपन करते हैं आज। तो आप आराम से बैठ जाओ और किस चीज पे काम करेंगे? आपका आइडियल सेल्फ पे काम करें। ठीक है, चलो। तो अब आप लोग सब लोग अपने हिसाब से सोचो कि आपका आइडियल सेल्फ क्या है। जो भी आपका आइडियल है, करियर में, फिजिकल उसमें, दिखने में। जैसे कोई लेडीज है तो बोले कि हाँ फलानी हीरोइन मेरी आइडियल है, या कोई शाहरुख खान तो खैर बहुत अच्छा नहीं है, दूसरा खान जो है वो बड़ा अच्छा हट्टा कट्टा है। हाँ हाँ, तो सलमान, तो मेरे को सलमान जैसी बॉडी चाहिए। हाँ, जो भी आप सोचो, और करियर के बारे में सोच सकते हो, साइंटिस्ट होने के बारे में सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। तो आप इस एक्सरसाइज के लिए फटाफट 2 मिनट में एक आइडियल दिमाग में ले आओ। ये मेरा आइडियल है, मैं पूछूंगा नहीं आपसे, आपको अपने पास ही रखना है। ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, बुरा नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो कर ले। तो ये देख लो कि आपके जो आइडियल है, जिसके पास वो क्वालिटीज है जो आप सोचते हो कि वाह मजा आ गया, ऐसा आदमी होना चाहिए। ठीक है ना, कुड बी एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो वो उसका 1 मिनट के लिए ध्यान कर लो। ठीक है, नाउ वी विल गो इनटू हिप्नोसिस। तो हिप्नोसिस में हम जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि बस आप मेरी बात सुनते जाओ, जो जो मैं बोलता जाता हूँ करते जाओ, रिलैक्स होते जाओ। और जैसे जैसे आप मेरी बात सुनोगे और रिलैक्स होगे, आपके अंदर एक बड़ा आराम से एक कंफर्ट की फीलिंग आने लगेगी, है ना, ब्यूटीफुल कंफर्ट फीलिंग होगी। और ऐसी फीलिंग आपको कभी भी दुनिया में नहीं आई होगी, ये गारंटीड है ना, ये गारंटीड है। वो नहीं आए तो पैसे वापस, नहीं दिए तो भी वापस, है ना, बिल्कुल। चलो, तो चल आराम से बैठ जाओ, और अब सिर्फ अपनी आंखें ऊपर देखो, टुवर्ड्स दी सीलिंग। आंखों को से देखना है, गर्दन नहीं उठानी है। ओके, ये चल रहा है, माइक चल रहा है, हेलो? हाँ, तो आंखों से ऊपर देखना है और गर्दन नहीं उठानी है। और जैसे से आप ऊपर देखोगे, देखोगे धीरे धीरे आपकी आंखें थक रही है, दे आर गेटिंग टायर्ड। और जैसे आंखें टायर्ड होने लगी है, अब आप क्या करेंगे, आंखों को धीरे से बंद कर लोगे, धीरे से अपनी आंखें बंद कर लो। और जैसे ही आप आंखें बंद करोगे, ब्यूटीफुल कंफर्टेबल फीलिंग आने लगी और आप कंप्लीटली रिलैक्स होने लगे हो। फील दैट रिलैक्सेशन नाउ as you listen to the sound of my voice. Feel that relaxation completely now. एक लंबी सांस लेंगे और जैसे ही सांस को छोड़ेंगे, ब्यूटीफुल फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन। एक बार और सांस लेंगे और सांस को जैसे ही छोड़ेंगे, आंखें और भी भारी हो जाएगी और आंखें चिपक जाएगी कंप्लीटली, टोटली, एब्सोल्युटली। और लास्ट अब जब लंबी सांस लेंगे तब तो इतनी अच्छे से चिपकेगी कि आपको मजा ही आ जाएगा। ब्यूटीफुल, जस्ट एंजॉय। ठीक है, लंबी सांस आराम से, धीरे से, और छोड़ दो आराम, ब्यूटीफुल। अब आपकी आंखें इतनी हेवी हो गई है कि आप चाह कर भी आंखें नहीं खोल पाएंगे। फील दैट फीलिंग, फील दैट फीलिंग, आराम से फील दैट फीलिंग। एंड नाउ let the relaxation spread from the eyes to the cheeks, to your chin, to your neck. धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को नीचे जाने दें, आराम से गर्दन को ढीला छोड़ दो। And feel that relaxation going down into your shoulders, arms and hands. हाथ आपके आराम से पड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। इन ए मोमेंट मैं आपसे कहूंगा आंखें खोलने को, लेकिन आप जब आंखें खोलने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि आंखें तो खुल ही नहीं पा रही है। और अगर आपने कोशिश करी भी
तो आंखें 4 गुना ज्यादा हैवी हो जाएगी। हो जाने देना, है ना। स्लोली ट्राई टू ओपन योर आईज एंड क्लोज योर आईज बैक अगेन। बेहतरीन, बहुत अच्छा, ब्यूटिफुल। Feel this relaxation going down into your stomach, into your thighs, legs and feet. देखो आपके पैर आराम से नीचे रिलैक्स होकर के पड़े हुए हैं। ब्यूटीफुल। इतना अच्छा रिलैक्सेशन आपको जिंदगी में कभी फील नहीं हुआ जो आज फील हो रहा है। तो इस स्टेट को एंजॉय करो, इस स्टेट को एंजॉय करो। अब धीरे धीरे माइंड को रिलैक्स करेंगे। तो 100 से उल्टी गिनती गिनेंगे अपने अंदर ही, माइंड के अंदर। और जैसे जैसे उल्टी गिनती गिनने लगोगे वो नंबर्स फेंट होते चले जाएंगे और थोड़ी देर बाद मिलेंगे ही नहीं, आपको मिलेंगे ही नहीं। फील 100, 99, धीरे धीरे काउंट करना शुरू कर दें। 98, धीरे धीरे देखेंगे डिसअपियर हो जाएंगे नंबर्स, थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। बहुत अच्छे। फील दिस रिलैक्सेशन। अब आखिरी बार डीप रिलैक्सेशन में जाएंगे हम। काउंट ऑफ 5, 1, गोइंग डाउन, मोर एंड मोर एंड मोर, 2, इवन मोर डाउन, 3, बिल्कुल भी रिलैक्स्ड, 3 times more relaxed, 4, even more relaxed, even more relaxed, 5, all. Feel this relaxation. Beautiful, beautiful, beautiful. अब थोड़ी देर के लिए ये समझें कि हम एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं और सिनेमा हॉल में सामने बहुत बड़ी स्क्रीन है, मैक्स स्क्रीन है, मैक्स थिएटर है। उस बहुत बड़ी स्क्रीन पर एक मूवी चल रही है और उस मूवी में आपका जो आइडियल है वो दिख रहा है, जिसको आपने आइडियल समझ रखा है वो दिख रहा है। सी, फुल कलर में, लार्जर देन लाइफ, वो व्यक्ति जिसको कि आपने आइडियल माना है वो दिख रहा है। उसकी आवाज सुन रहे हो आप, उसके हाव भाव देख रहे हो और आप एडमायर कर रहे हो। क्या है ये? होती है बात, ये चीज है, मुझे ये बनना है। देखो, फील करो, सिर्फ वही दिखना चाहिए और कोई भी नहीं, और कोई भी नहीं। फील इट। एक एक चीज उसकी देखो, जो जो आपने क्वालिटीज आपने सोची है, देखी है, ऑब्जर्व करी है, फील दोज क्वालिटीज कंप्लीटली। और उसका अब धीरे धीरे और भी ज्यादा कलर बढ़ा दिया है। सी हिम मोर क्लियरली, ब्राइटनेस बढ़ा दी है। और ध्यान से देखो, इतने ध्यान से देखो कि वो सारी चीजें आपको एकदम क्लियरली दिखने लगी। अब हम क्या करेंगे कि धीरे धीरे उस पिक्चर को छोटी करेंगे, छोटी करेंगे। पहले वो लार्जर देन लाइफ थी, अब वो छोटी हो जाएगी। वो छोटी होकर के ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। धीरे धीरे कलर भी ड्रेन कर देंगे उसका कलर भी हमने ड्रेन कर दिया। तो ब्लैक एंड वाइट हो गई, छोटी हो गई, फेंट हो गई, पर दिख रहा है वो व्यक्ति यहीं स्क्रीन पर है। अब आप अपनी सीट से उठेंगे
और आप देखो कि आप खुद ही सीट से उठ रहे हो, आप अपने आप को देख रहे हो कि सीट से उठ करके आप स्क्रीन की तरफ चल पड़े और धीरे धीरे आप स्क्रीन तक पहुंच गए और वो व्यक्ति फिर भी स्क्रीन पर है, एक्टिंग कर रहा है वहाँ, तो वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और आपने धीरे धीरे स्क्रीन के एकदम नजदीक पहुंच गए, 1 फुट दूर पहुंच गए, 6 इंच दूर पहुंच गए और एक क्षण में आप स्क्रीन में मर्ज हो गए। स्क्रीन में मर्ज होकर के आप उसी किरदार के अंदर चले गए और किरदार का रूप चेंज हो गया। आप हो स्क्रीन पर, अब वो किरदार नहीं है। फील योरसेल्फ मर्जिंग विद दैट idol, merging with that person, merging with that idol that you love and want to be, और आप वहां मर्ज हो जाओ उसमें। अब स्क्रीन पे सिर्फ आप हो, वो नहीं है, लेकिन काम वही हो रहा है, सोच वही है। अब धीरे धीरे स्क्रीन की साइज बड़ी कर रहे हैं और बड़ी कर रहे हैं, डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना बड़ी स्क्रीन हो गई, फुल साइज हो गई अपनी स्क्रीन की, मैक्स साइज में आप लार्जर देन लाइफ हो और कलर बढ़ाने लगे हम, कलरफुल स्क्रीन हो गई, ब्राइट हो गई, कंट्रास्ट बढ़ा दिया और इतनी ब्राइट आप दिख रहे हो उसमें स्क्रीन पे कि आप कभी भी नहीं थे अपने लाइफ में। इन फुल कलर, इन फुल एब्सोल्यूट ग्लोरी, देखो अपने आप को, ये आप हो। अब आप वो नहीं हो जो आप पहले थे, ये आप हो। फील कैसा लगता है उस किरदार में रहना, कैसा लगता है वो सारी प्रॉपर्टीज हमारे अंदर आ जाना, कितना पावरफुल लगता है और कितना कॉन्फिडेंट लगता है। हमें हर समय मालूम रहता है उस रोल में कि हमें क्या करना है, कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। फील, ये फीलिंग पूरे के पूरे बॉडी में एक एक सेल में समा जानी चाहिए, राइट नाउ, राइट नाउ। और ये फीलिंग जो आपके अंदर आ गई है वो अब कहीं नहीं जाएगी, चाह कर भी नहीं जा सकती, परमानेंट। फील, फील, बेहतरीन, ब्यूटीफुल। अपने अंदर के चेंजेस को फील करो, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना फील, फुल कलर, फुल एनर्जी, एवरीथिंग राइट देयर। Completely live that, live that, live that complete person. You are right there. Completely live करो उसको, फील करो। सोते जागते उठते बोलते सब क्या कर रहे हैं आप, वही कर रहे हैं। अब वापस स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं, नॉर्मल साइज का स्क्रीन कर दिया और अब आप वापस मेरे कहने पे पिक्चर फ्रेम से निकलेंगे, स्क्रीन से निकलेंगे और अपनी कुर्सी पे आके जहां आप अभी बैठे हैं वहीं बैठोगे। लेकिन अब आप वो नहीं हो जो थे, अब आपको मालूम है आप कौन हो, आपको मालूम है आपके क्या पोटेंशियल है, आपको मालूम है कि आप क्या कर सकते हो, आपको मालूम है कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज है। फील ऑल ऑफ देम इन योर चेयर जस्ट नाउ। फील, एंजॉय, ये फीलिंग एंजॉय करो। एंड नाउ स्लोली वो टाइम आ रहा है कि हम अपनी ट्रांस से बाहर आएंगे, ठीक है, और फिर काउंट करेंगे 3 से। नंबर 3, देखें आपके पैरों में वापस शक्ति आने लगी,
वापस एक एनर्जी बढ़ने लगी। 2, आपके बदन में, हार्ट में, चिन में, हाथों में एनर्जी आ गई है और धीरे से एनर्जी अब चेहरे पे चढ़ रही है। और 1, अब आप धीरे से जब भी आप चाहें अपनी आंखें खोल सकते हैं आराम से। फील द डिफरेंस। कोई शेयर करेंगे कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? बचपन। वाओ। कितने लोग थे जिनकी आंखें नहीं खुल रही थी? ये हाथ ऊपर कर। नहीं खुल रही थी। नहीं। तो देखिए ये एक पावर है इसका, और ये तो हमने ग्रुप में किया है, 200 लोगों में किया है। जब हम 1-on-1 10 लोगों में करते हैं, 15 लोगों में, तो बहुत डीप जाते हैं और बहुत डीप जाके बहुत डीप काम कर जाते हैं। तो पता है जो कभी नहीं हो सकता। रिलैक्स लग रहा होगा, बहुत रिलैक्स लग रहा होगा। अब आप रात को जाओगे देखना आपकी नींद कैसी आती है, आज डिफरेंस रहेगा। आप अपने आप को देखना कि मेरे को ओवरऑल फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस और वो कैसा रहता है। धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जस्ट 10 मिनट या 15 मिनट का था हमारा सेशन, उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बात करी थी कि हमें अपने बंधनों को काटना है, बंधनों को छोड़ना है। कई लोगों के दिमाग में रहता है कि उनके नेगेटिव बहुत मेमोरीज रहती है कि हमारे साथ वो बुरा हुआ, ये बुरा हुआ। मतलब आप जानते होंगे ऐसे लोग जिनके पास जाओगे तो हमेशा कंप्लेन ही करते हैं कि देखो उसने आज ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। उनके दिमाग में वही चलता रहता है, उनके दिमाग में ये नहीं रहता कि उन्हें क्या करना है। तो उनके लिए भी हमारे पास जब हम रिट्रीट में इसको करते हैं तो रिट्रीट में उनको पूरे डीप हिप्नोसिस में ले आके उसको इरेज करा देते हैं कि जो भी चीज़ हमें सोचनी नहीं है आगे से कि हमारे साथ बुरा हुआ, अच्छा हुआ, जो भी चीज़ हमें परेशान करती है, अगर आप 15 मिनट 20 मिनट भी रोज़ सोचते हैं उसके बारे में, तो हफ्ते में कितना हो गया? 140 मिनट तो आपने ऐसे ही खराब कर दिए। और फिर साल भर में, महीने में कितने दिन और साल अपने टाइम खराब करते हैं, अपना एनर्जी खराब करते हैं पुरानी बातें सोच के, जो कि हमें लगता है, कई लोग लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं होती, मेरे से कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, ये सोचता रहता है। उसको मिटा दो, जाके इरेजर लेके मिटा दो वहाँ से, उसके ब्रेन में से, वो मिट जाती है। और जब उठता है तो बोला क्या है? कोई नहीं, बोलो क्या काम करना बताओ। और उसके बाद से हमने ये डॉक्यूमेंट किया है कि 2 या 3 महीने में लोगों के टर्नओवर्स डबल हुए हैं जो बिजनेस में है, बिकॉज लिमिटिंग बिलीव्स खत्म हो गई, हिचक खत्म हो गई। जो सेल्स में है उनके सेल्स बढ़ गए भयंकर, क्योंकि पहले ये था कि इसने मेरे को सुनेगा कि नहीं मैं इसके पास जाऊंगा, तो अब तो बोले नहीं, सुनने का तो क्वेश्चन ही नहीं, काम तो करके ही आ जाऊंगा मैं। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, सोचना भी नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि पावरफुल है इसमें, प्रोसेस में। और कोई फीडबैक, किसी को कुछ और समझ में आया इसमें? ऐसा तो नहीं लग रहा कि आगे आप सो जाए हम? थैंक यू सो मच। और बस इतना ही कहना था, थोड़ा सा हमें समय मिला, हम बहुत आभारी हैं आपके, आप लोगों ने इतना बहुत कीमती समय निकाला है। एंड आई होप कि थोड़ा वो रहा होगा। हाँ, 2 लाइन ये बोलूँगा, आपको कुछ रिट्रीट्स के पैम्फलेट में कम पड़े, सामने नहीं आ पाए, तो वो एक सूरज कुंड में हम कर रहे हैं अक्टूबर में, फर्स्ट वीक में। तो उसके लिए अगर आप लोग रजिस्टर करना चाहें तो 2-4 दिन में कर लीजिएगा, क्योंकि वो छोटी जगह है, 50-60 लोगों से ज़्यादा हम ले नहीं पाएंगे उसमें। तो वो है मनेसर में, इसी हफ्ते हो रहा है वीकेंड पे, तो जो आना चाहें वो राइट अवे हमें कॉन्टैक्ट कर लें, तो यू कैन कम अप फॉर दिस वन ऑल्सो, है ना। उसके अलावा आगे कभी भी कोई भी रुकावट हो, कहीं पे भी कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो कि मेरा ये ठीक नहीं हो रहा, मेरा वो ठीक नहीं हो रहा है, फील फ्री टू सेंड अस अ मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजें मेरे को या सुरभि जी को, एंड वी विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विदाउट एनी प्रॉब्लम, है ना। तो कभी भी कुछ भी हो, अटक जाओ तो जरूर करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि सुरभि जी की जो टैलेंट्स है वो अनइमेजिनेबल है। अभी तो उन्होंने, आपने उनको 2 दिन तक सुनोगे तो आपको चलेगा कि अरे क्या बात है, मजा आ जाएगा। आई मीन एक स्पिरिचुअल लेवल बहुत डिफरेंट है मैडम का। तो दैट इज हाउ वी मेक अ टीम एंड वी वर्क टुगेदर,
and hope to change and help as many people as possible. अभी तक हम लोग रिट्रीट जो करते हैं वो नो प्रॉफिट नो गेन पर है, खाली हमने खर्चे निकालते हैं. एंड वी हैव डन इट इन न्यूयॉर्क, शिकागो, दुबई, अहमदाबाद, 2 बार दिल्ली में, तीसरी बार दिल्ली अभी हो रही है, इंदौर. तो जहाँ भी मौका मिलता है, वी ट्राई टू गो देयर एंड हेल्प देम एंड टीच देम न्यू टेक्निक्स so that things can really become amazing. So thank you, Dr. Anil Singhvi and Ma'am Surabhi Pandya. गुड लाइफस्टाइल ईटिंग हैबिट्स के बारे में हमें गाइड करने के लिए, और हमें लगता है कि ये सब प्रैक्टिस करके हम कुछ बेहतर NHI के लिए कंट्रीब्यूट कर सकेंगे. वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच.